بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹاپک ہے، بیکاز لاسٹ ہم 2-3 منتھ سے جو بھی کلاسز کر رہے ہیں وہ عقیدہ کی کلاسز کر رہے ہیں، اور اس میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جرنی آف سول آفٹر ڈیتھ، یعنی روح کا سفر جو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے۔ ایک چیز جو کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم ان سین ورلڈ، یعنی جو ایسی دنیا جس میں obviously ہم نے کبھی کچھ نہیں دیکھا، یا ہم جو جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا بتانے کے لیے، سو جو ان سین ورلڈ ہے اس کے اندر کوئی بھی اسکالر یا کوئی بھی جو ٹیچر ہے وہ اپنی طرف سے کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں پیش کر سکتا۔ اس میں ہمارا جو سارا ایمفیسائز ہوتا ہے پڑھانے کا وہ obviously تھرو شریعہ ہوگا، یعنی ہم قرآن اور حدیث سے ہی ریفرنس لیں گے، اور قرآن اور حدیث کے پروف کے اوپر ہی ہم بات کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ سٹیج آئے گی، یہ سٹیج آئے گی۔ اس میں جو بھی کوئی ٹیچر ہے یا اسکالر وہ اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ نہیں کر سکتا، رائٹ؟ سو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ آگے جب انشاءاللہ ہم فردر اس کے اندر جائیں گے، جو نیکسٹ منتھ کے ہمارے پلان ہیں جن اور باقی ساری میجک وغیرہ میں، اس کے اندر بھی وہ ان سین ورلڈ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی بھی انسان اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتا، بیکاز وی ڈونٹ نو۔ طیبہ کہہ رہی ہیں آواز کلیئر نہیں آ رہی، آپ لوگوں کو آ رہی ہے میری آواز کلیئر؟ ڈسٹورشن یس آ میم، رہی ہے؟ وائس کلیئر ہے، ان کا شاید نیٹ کا ایشو ہو میں بھی۔ ہو سکتا ہے، جی تھینک یو۔ چلے جی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں، آپ ایسا کریں دوبارہ لاگ ان کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے آپ کا نیٹ کا کوئی ایشو ہو۔ سو کلاس سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ آج جو آیت ہے جس سے ہم اپنی کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا، کنجی کہتے ہیں بیسیکلی چابی کو، کیز جو ہوتے ہیں، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو آئے تھے بیسیکلی جس موقع پہ ریویل ہوئی، اس ٹائم پہ جو ڈس بلیورز تھے، کفار تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی یہ تنگ کرتے تھے، یا ان کا کلیم یہ تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہے یا قیامت آنی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن آپ ہمیں، کیونکہ آپ نبی ہیں اور کیونکہ نبی ہونے کے ناطے آپ کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، تو آپ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ قیامت جو آنی ہے یا جو عذاب آنا ہے یا جس بھی چیز کا پنشمنٹ کا آپ ذکر کرتے ہیں یا اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر کرتے ہیں، اس کی ہمیں ایک تاریخ بتا دیں، تاکہ اس تاریخ کے اوپر ہم پھر تیار رہیں مینٹلی، اور ہم اس کو ویٹ کریں، ویل لک اپ ٹو اٹ کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ دن آنے والا ہے۔ سو اس سوال کے جواب میں یہ آیت بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو غیب ہے، یعنی جو علم غیب ہے، ان سین ورلڈ کا علم ہے، وہ ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا، اور ان تک بھی جو بات پہنچتی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہتے تھے بات ان کو بتانا، وہ انفارمیشن ان کو دی جاتی تھی، ادروائز باقی ساری چیزیں جتنا بھی کائنات کے اندر جو پچھلا گزرا ہے یا جو آنے والا وقت ہے یا جو ہڈن چیزیں ہو رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ سو اس آیت سے ہم نے اپنی کلاس سٹارٹ کی ہے۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بیسک ڈیفینیشنز پتا ہوں کہ کون سی چیز کا مطلب کیا ہے، کیونکہ جب آپ آگے یہ ورڈز یوز کریں گے اور آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کی ڈیفینیشن یا ان کی تعریف کیا ہے، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی اس کو سمجھنا۔ سو دا فرسٹ تھنگ از کہ سول کیا ہے، یعنی روح کا کیا کانسیپٹ ہے، روح کیا چیز؟ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ روح جو ہے وہ ایک خفیہ سی ایک چیز ہے، ایک سیکرٹ ہے، جو کہ انسان کے جسم، کیونکہ دیکھیں ہم اپنے جسم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن ہم اپنی روح کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سو بیسیکلی یہ ایک ایسنس ہے، ایک خفیہ چیز ہے، مسٹری ہے، جو کہ انسان کے جسم کے اندر ہے، اور اس کی وجہ سے انسان زندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سو جیسے ہی آپ کی جب خدا نخواستہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے اور باڈی مرتی ہے، تو بیسیکلی باڈی جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر سے ایک ایسنس یا ارک یا اس کا جو مین مسٹیریس چیز ہے، جس کو ہم ایکس فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ نکل جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ نکلتی ہے تو اس کے بعد جسم جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے، اس کا ہر فنکشن کرنا بند ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو جو انسان ہے اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یعنی ایون آپ سوچیں کہ اس کا نام بھی چینج ہو کے وہ ڈیڈ باڈی یا لاش اس کو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس شخص کا نام لیں، کیونکہ جو اس کی پہچان ہے، جو اس کا نام ہے، جو اس کی ذات ہے، وہ اس روح کے ساتھ جسم کے کمبینیشن کی وجہ سے،
ठीक है। अब जो रूह है उसकी क्वालिटी या उसका क्या एक्चुअली क्या रियलिटी है, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला को पता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला की हमने जैसे पिछली आयत में बात की कि जो गैब का इल्म है, जो अनसीन है, जो चीजें नजर नहीं आती हैं, वो सिर्फ उसका इल्म अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है। इसमें सूरह इसरा की आयत नंबर 85 है, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, और ए पैगंबर, ये लोग तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो कि रूह मेरे परवरदिगार के हुक्म से बनी है, और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो बस थोड़ा सा ही इल्म है। एक चीज आपने याद ये रखनी है कि ये रूह और जो आज हम जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं अकीदा को लेके। और मुख्तलिफ जो फिरके और सेक्ट्स और मुख्तलिफ जो आप समझें कि इस्लाम के अंदर आगे से आगे जो हम फिरका वारियत देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो ये जो रूह और मरने के बाद की चीजों का अकीदा है, इसके साथ रिलेटेड है। तो अगर ये अकीदा किसी को सही कुरान और हदीस के रेफरेंस से समझ आ जाए, तो काफी सारी वो बुराइयों से और लोगों के वर्गलाने से, मिसगाइडेंस से बच सकता है। ठीक है। तो पहला जो मिसगाइडेंस इसके अंदर आपको सुनने को मिलती है, वो लोग ये कहते हैं कि रूह जो है वो अल्लाह ताला का हिस्सा है। ठीक है, इट्स नाउजुबिल्लाह पार्ट ऑफ अल्लाह। तो ये समझ लीजिए कि जो कुरान में वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो अमरी रब्बी का, यानी मेरे रब के हुक्म से, यानी अमर कहते हैं हुक्म को। ठीक है, तो मेरे रब का हुक्म है या मेरे रब के हुक्म से बनी है। तो एक जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है वो इधर ही आप क्लियर कर लें कि जो रूह है उसकी हकीकत कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि रूह जो है, रूहें जो हैं, वो अल्लाह ताला का हिस्सा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला का हिस्सा नहीं है, वो अल्लाह ताला की क्रिएशन है। और उसकी रीजन ये है कि जब हम आगे पढ़ेंगे और आप सारी अजाब कब्र और अजाब जहन्नुम के बारे में सुनेंगे, तो जो जहन्नुम में अजाब किया जाएगा वो रूह और जिस्म दोनों पे होगा। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रूह अल्लाह ताला का हिस्सा है, तो क्या नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला का हिस्सा जहन्नुम में जलाया जाएगा? सो ये कॉन्सेप्ट फौरन आप जल्दी से ठीक कर लें, इसको समझ लें कि जो रूह है वो अल्लाह ताला की क्रिएशंस में से एक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वक्त आपको क्लास पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपने लैपटॉप से, यानी ये मेरा लैपटॉप, मैं जिससे क्लास पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब ये कि लैपटॉप इज माय पोजेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि लैपटॉप मेरा हिस्सा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की रूह जो है, मिन रूहिल्लाह, या जो इस किस्म की जो आप जब आयतें पढ़ते हैं तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसके मुख्तलिफ मतलब हैं जो कि आगे आगे हम पढ़ेंगे तो समझेंगे, लेकिन रूह जो है वो बेसिकली अल्लाह ताला की क्रिएशन में से एक क्रिएशन है। उसकी हकीकत क्या है हमें नहीं पता, और ना अल्लाह ताला ने हमें बताई है, लेकिन इट इज नॉट पार्ट ऑफ अल्लाह। ठीक है, कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो जब हम इसको पढ़ते हैं, रूह और नफ्स, एक और वर्ड आपने सुना है नफ्स, रूह और नफ्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। और अक्सर लोगों को नफ्स का कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आसान तरीन अल्फाज में अगर मैं आपको नफ्स और रूह का कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो रूह जो है ये जब जिस्म से बाहर होती है तो ये रूह कहलाती है, और ये जब जिस्म के अंदर है तो ये नफ्स कहलाता है। ठीक है, यानी अभी जो हम हमारे अंदर हम सारे इसको पढ़ रहे हैं, और हमारे अंदर जो रूह है, इट विल बी कॉल्ड एज नफ्स। ठीक है, यानी जब वो जिस्म के अंदर है तो वो नफ्स है, और जब वो जिस्म से निकल गई बाहर डेथ के बाद, तो उसको हम रूह कहते थे। ठीक है, सो ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। और नफ्स जो है उसके बेसिकली फिर कुरान में हम जैसे देखते हैं कि तीन तरह की नाम टाइप्स बताई गई हैं, जिसमें नफ्से लवामा है, नफ्से मुतमइन्ना है, और नफ्से अमारा है। ठीक है, तो नफ्से अमारा जो है वो बेसिकली जो इवल इंक्लाइंड होती है, जो गुनाह की तरफ नफ्स लेके जाता है। और इसमें होता बेसिकली ये कि जो रूह है, वो जो आपका, जो हमने पिछली क्लासेस में कारीन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो शैतान आपके साथ अटैच होता है, तो जो रूह है वो उस कारीन के अंडर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होती है, और वो गुनाह की तरफ इंक्लाइन होता है नफ्स, यानी वो रूह। और उसको नफ्से अमारा कहते हैं। जो नफ्से मुतमइन्ना है वो रूह होती है, वो नफ्स है बेसिकली आपके अंदर है क्योंकि बॉडी के। तो ये वो नफ्स है जो कि अल्लाह ताला के कमांड्स के ऊपर कायम होता है, और ये बेसिकली फरिश्तों की बात, जो हमारे साथ फरिश्ते होते हैं उनकी तरफ इसका इंक्लिनेशन होता है, और ये शैतान की बातों में नहीं आता। उसको हम कहते हैं नफ्से मुतमइन्ना। और तीसरा जो नफ्स होता है वो नफ्से लवामा होता है। लवामा को अगर आप आसान अल्फाज में समझे तो मलामत करने वाली एक चीज से आप समझे कि उसको हम तशबीह दे सकते हैं कि ये वो नफ्स होता है जो फ्लक्चुएट करता है खैर और शर के बीच में। यानी कभी जैसे ही गुनाह करेगा तो इंसान को अपने अंदर गिल्ट होने लगता है कि मेरे से गुनाह हो गया, और इमीडिएटली फिर आप उसके बारे में बुरा फील करते हैं, अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं। एंड इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन गुड एंड बैड, यानी कभी आप नेकियों की तरफ चले जाते हैं, कभी बदी की तरफ चले जाते हैं। तो ये बेसिकली कारीन और फरिश्तों के इम्पैक्ट के नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, सो रूह जिस्म से निकल गई, रूह कहलाएगी, जिस्म के अंदर है उसको नफ्स कहेंगे। अब दूसरी डेफिनेशन जो आपको समझ आनी चाहिए वो है मौत की।
ठीक है, व्हाट इज डेथ, डेथ क्या है। इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला जो हमें कुरान की आयत मिलती है वो है सूरह इमरान की आयत नंबर 185, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला, वैसे तो लंबी आयत है लेकिन इसका शुरू का पोर्शन है कि कुल्लू नफ्सी जायकातिल मौत, ठीक है, यानी हर जानदार को मौत का मजा चखना है। ये आयत हमने बहुत सुनी हुई है, हमें पता है। डेथ जो है वो बेसिकली क्या है कि आपकी जो रूह है वो आपके जिस्म से जब निकल जाएगी तो इस प्रोसेस को या इस इवेंट को जो है वो डेथ कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस्लाम और साइंस में फर्क है। जो इस्लाम है वो डेथ को कैसे डिफाइन करता है, इस इस्लाम डेथ को जिंदगी के खत्म होने को डिफाइन नहीं करता, बल्कि ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो मौत है वो एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन से मुराद ये है कि आप लेट्स सपोज कि ट्रेन से जा रहे थे कहीं और आपने ट्रेन से उतरे किसी सिटी में और उतर के फिर आपने एरोप्लेन की फ्लाइट पकड़ ली, तो एक ट्रांजिशन है कि आप पहले ट्रेन में सफर कर रहे थे और फिर आपको आगे किसी मंजिल पे जाना था, तो आपने ट्रेन से उतर के और आगे आपने एयरपोर्ट का टिकट लेके, प्लेन का टिकट लेके आप फ्लाइट आपने बुक कर ली, ठीक है। सो जो इस्लाम में डेथ का कॉन्सेप्ट है वो ट्रांजिशन का है, यानी रूह जो है वो, क्योंकि हमने बात की कि रूह कभी मरती नहीं है, तो जो रूह है वो एक स्टेशन से, एक जर्नी से उसने वो जैसे आप पड़ाव कहते हैं उर्दू में या स्टॉप कहते हैं, स्टॉप ओवर, वो उसने कंप्लीट किया और वो कंप्लीट करके वो अगली जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ चल पड़ी, ठीक है। और जो पिछली डेस्टिनेशन है यानी ये जो दुनिया की जिंदगी है वो लो ग्रेड काउंट होती है, और जो अगली जिंदगी आने वाली है वो मोर एडवांस है और वो ज्यादा हायर ग्रेड की काउंट होती है, क्योंकि बेसिकली हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हम आगे अपनी जो डेस्टिनी है, फाइनल डेस्टिनी जन्नत या जहन्नुम, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बरक्स जब आप साइंस की तरफ देखते हैं तो साइंस क्या कहती है कि सिंपली डेथ क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो भी सिस्टम्स आपको चाहिए आपकी जिंदगी को चलाने के लिए, वो सिस्टम्स जब बंद होना शुरू हो जाते हैं तो ये डेथ है। यानी आपके जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं जिसकी वजह से एक कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है या लिविंग क्रीचर वो जिंदा है, वो जब प्रोसेस बंद हो जाएंगे, सर्कुलेशन बंद हो जाएगी, एक्सक्रीशन बंद हो जाएगी, सांस लेना बंद हो जाएगा, तो ये सारे जो प्रोसीजर्स जब बंद होंगे तो उसको डेथ कहते हैं। और इसी तरह फिर साइंस में जब आप ब्रेन वाले जो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं उसमें जिस वक्त ब्रेन आपका डेड हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी का भी, तो उसको कहते हैं बेसिकली जो ब्रेन फंक्शन जब बंद हो जाता है, जिसमें आपका जो जिन्होंने थोड़ी साइंस पढ़ी हुई है उसमें आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा जो ब्रेन स्टेम है वो भी जब काम करना बंद कर दे तो इसको ब्रेन डेथ कहते हैं। और ब्रेन डेथ के साथ जो है वो फाइनली लीगल डिक्लेरेशन ऑफ डेथ बहुत सारी जगहों पर मेडिकली ब्रेन डेथ के साथ होती है, ठीक है। सो ये डेथ है, ये इस्लामिक और जो आपको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। ये एक फनी सी पिक्चर मुझे मिली थी क्योंकि हमारी जो स्लाइड है वो स्लीप इज अ फॉर्म ऑफ डेथ, यानी जो नींद है उसको भी इस्लामी तौर पे कहा गया है कि ये हमारी जो है वो मौत का एक समझे कि रेप्लिका है, छोटी लेवल पे एक मौत है। इसमें सूरह जुमर की आयत नंबर 42 है जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, अल्लाह तमाम रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज कर लेता है और जिनको अभी मौत नहीं आई होती उनको भी इनकी नींद की हालत में कब्ज कर लेता है। फिर जिनके बारे में उसने मौत का फैसला कर लिया इन्हें अपने पास रोक लेता है और दूसरी रूहों को एक मुअय्यन वक्त के लिए छोड़ देता है। यकीनन इस बात पर इन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। यानी इस आयत से हमें पता चलता है, ये पता चलता है कि जिस वक्त हम सोने के लिए लेटते हैं, और ऑब्वियसली हम देखें ना सोने से पहले जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रिस्क्राइब अज़कार बताएं उसमें सोने से पहले की दुआ और इवन जब हम जागते हैं उस दोनों दुआओं के अंदर हम जिंदगी मौत का जिक्र करते हैं। सो बेसिकली जब सोने के लिए लेटा जाता है तो उसमें ये होता है कि हम जो रूह है वो आपके जिस्म से निकल जाती है, लेकिन वो किस तरह निकलती है कि वो कम्प्लीटली नहीं निकलती, वो पार्शियली निकलती है, इसलिए आप सांस लेते रहते हैं, आपके सिस्टम सर्कुलेशन वगैरह काम करती रहती है, लेकिन इटसेल्फ जो रूह है, जो आप समझे कि कोर रूह है, वो निकल जाती है और एक सर्टन उसका जो समझे कि एक प्रोबेबली कोई जैसे धागा बंधा रह जाता है या लाइक इस तरह से कुछ उसका सेक्शन जो है वो हमारे जिस्म में मौजूद रहता है और मेजर जो है वो निकल जाती है। और इसीलिए फिर हम ये दुआएं पढ़ते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता, इसीलिए आप देखें ना सूरह बकरा की जो लास्ट 2 आयत हैं वो पढ़ने से सोने से पहले इसीलिए हम पढ़ते हैं आमन रसूल बिमा उनजिला अलैहि वाली जो है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर सोने में वो जो रूह निकली है वो वापस नहीं आई और हमारा वक्त आ गया हुआ तो हम ईमान की हालत में मरेंगे, ठीक है। इसी तरह लेकिन ये किस तरह होता है ये हमें नहीं पता, ये क्योंकि साइंस इसको नहीं अभी तक इसके बारे में कुछ रिसर्च नहीं हो सकी, साइंस इसको नहीं बता सकी कि ये किस तरह हो रहा है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात को पता है कि ये किस तरह होता है कि हम जिंदा भी हैं और तब भी हमारी रूह कनेक्टेड है बट बॉडी में नहीं। इसी तरह बुखारी में एक माइक खुला हुआ है किसी का, प्लीज देख लीजिएगा। बुखारी में एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अच्छा, हदीस का मैं मफहूम बयान करूंगी बेसिकली। आयत जो है वो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसके जो वर्डिंग्स है वो वर्ड टू वर्ड आपको रीड करके सुनाऊं। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी जो रूहें हैं वो ले लेता है जब वो चाहता है, और फिर उनमें से जिसको चाहता है उसकी रूह वापस कर देता है, यानी ये स्लीप के टाइम की बात हो रही है। इसी तरह मुस्नद अहमद जो है उसके अंदर एक हदीस है जिसमें अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किसी जर्नी पे, किसी ट्रिप पे जो है वो उनके साथ गए हुए थे, और उस हुआ ये कि वो सोते रह गए। ठीक है, सहाबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते रह गए, और वो जब उठे तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम सब जो है वो डेड थे बेसिकली, यानी जब सो रहे थे तो तुम्हारी रूहें कब्ज कर ली थी, और अल्लाह ताला ने तुम्हारी रूहें तुम्हें वापस दे दी हैं अब। और इसी के ऊपर फिर आगे जो हमारी फिक की बड़ी इंपॉर्टेंट रूलिंग निकलती है कि अगर कोई सोता रह जाए तो, और वो नमाज मिस हो जाए तो वो क्या करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी जो सोता रह जाए और उसकी नमाज छूट जाए, वो जैसे ही उठे तो अपनी नमाज अदा कर ले, और फिर जो अगर भूल जाता है तो वो जैसे ही उसको याद आए वो फौरन अपनी नमाज अदा करे। राइट। तो ये जो फिक की रूलिंग है वो हमें इस सेकंड पार्ट ऑफ हदीस से मिल जाती है, जिसके अंदर हमें पता है कि अगर लेट्स सपोज फजर के वक्त कोई सोता रह गया तो जैसे ही उसकी आंख खुले वो फौरन उठ के नमाज अदा करे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उसकी लेकिन ये रोज का ड्रामा नहीं करना, मतलब ये नहीं हो कि रोज आप सोते रह जाएं, फजर मिस कर दें, और फिर जब 8 बजे या 9 बजे आंख खुल रही है तो उस वक्त आप फजर पढ़े। दिस इज लाइक वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी इस तरह हो, और ना चाहते, नहीं आपकी नीयत थी बट आप ना चाहते हुए ना नहीं उठ सके, सो सके, तो उस केस में ये फिर रूलिंग अप्लाई होती है। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आ जाती है वो बरज़ख है। नाम हम सबने सुना है। बरज़ख जो है वो अरबिक का वर्ड है जिसका मतलब है पर्दा, वेल, या कोई रुकावट, या कोई ऐसा आप समझे कि जैसे हम दो चीजों को अलग करने के लिए बीच में एक सेक्शन लगा देते हैं, उसको बरज़ख कहते हैं। और ये जो है क्या करती है कि बरज़ख या पर्दा जो होता है, जैसे आप देखें ना मेल और फीमेल गैदरिंग होती है तो उसके बीच में एक पार्टीशन कर दी जाती है, और उस पार्टीशन का मकसद क्या होता है कि ये मेल और फीमेल गैदरिंग मिक्स ना हो। तो सिमिलरली बरज़ख का मतलब जो है वो लिंग्विस्टिकली वो एक पर्दा है जो दो चीजों को मिक्स होने से रोके। जो इस्लाम के अंदर बरज़ख का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि जो बरज़ख है वो इस जो डेथ होगी इंसान की, यानी मौत है, उससे लेकर जो रेजरेक्शन है, यानी जो क़यामत के दिन वो कब्रों से उठेंगे मुर्दे और उठाया जाएगा सबको, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, ये आप समझे एक तरह से वेटिंग टाइम पीरियड भी हम इसको कह सकते हैं, ये बरज़ख है। यानी मौत, जो इंसानी जान खत्म हो जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है, उसके टिल जब क़यामत आएगी, जब भी आएगी, उस वक्त के बीच का जो टाइम है उसको हम बरज़ख कहते हैं। ठीक है, इसकी जो कुरान के अंदर हमें वर्ड मिलता है बरज़ख, वो सूरह रहमान के अंदर आयत नंबर 19 और 20 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसी ने दो समंदरों को इस तरह चलाया कि वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। और फिर 20वें आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि बरज़ख का जो वर्ड है बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, यानी फिर भी इनके दरमियान एक आड़ होती है। आड़ से मुराद बरज़ख यानी पर्दा होती है कि वो दोनों अपनी हद से नहीं बढ़ते। ठीक है। सो बेसिकली बरज़ख का वर्ड जो है वो यहाँ पर भी यूज हुआ है। फिर इसके अलावा सूरह मोमिनून के अंदर आयत नंबर 100 है, जिसमें बेसिकली हाल बताया जा रहा है कुफार का, या जो हिपोक्रेट्स हैं या जो गुनाहगार लोग हैं, वो जब क़यामत के दिन उनको जहन्नुम में डाला जाएगा तो वो फिर उस वक्त गिड़गिड़ाएंगे, और वो उस वक्त कहेंगे अल्लाह ताला से कि हमें वापस भेज दें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह मोमिनून की आयत नंबर 100 में फरमाते हैं, ताकि जिस दुनिया को छोड़ के आया हूँ इसमें जाकर नेक अमल करूँ। हरगिज नहीं, ये तो एक बात ही बात है जो वो ज़बान से कह रहे हैं, और उन मरने वालों के सामने आलम बरज़ख की आड़ है जो इस वक्त तक कायम रहेगी जब तक उनको दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। ठीक है, यानी एक रिस्ट्रिक्शन है, एक पर्दा है जो कि इट्स देयर, और वो अब हटेगा नहीं। यानी ये समझें कि जो बरज़ख है या जो लाइफ आपकी जिंदगी के बाद डेथ है और फिर आगे बरज़ख है, ये वन वे ट्रैफिक है, ये वापस नहीं आ सकती। इट्स लाइक गोइंग ओनली फॉरवर्ड, पीछे वापस मुड़ के नहीं आएगी। जो बरज़ख की जिंदगी अगर आसान अल्फाज में आप समझना चाहें तो सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि दो बहनें हैं, उसमें से एक जो है वो सो रही है, दूसरी जाग रही है। तो जो जाग रही है उसको जो बहन सो रही है बेड पे, वो सोती हुई नजर आ रही है, उसको लग रहा है कि ये बिल्कुल पुरसुकून है और ये सो रही है। लेकिन जो बहन हरसेल्फ जो सो रही है, वो अपनी सोचों में, ख्वाब में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही होगी, और वो पता नहीं क्या क्या फेस कर रही होगी, कौन से उसके मतलब आप सोचे ना अच्छे या बुरे ख्वाब चल रहे होंगे उसके। सो बेसिकली जो बाहर बंदा बैठा हुआ है, जो बहन बाहर बेड पे बैठी हुई है, उसके नजदीक वो बहन सो रही है, उसकी बॉडी वहीं पर मौजूद है और वो सुकून से लाइक शी स्लीपिंग। लेकिन जो सो रही है
उसकी सोच में उसको नहीं पता कि वो सो रही है, उसकी एक अलग लाइफ रील चल रही है। सो सिमिलरली जो शख्स मर जाता है, हमें वो नजर आ रहा होता है कि वो मर गया है, उसकी बॉडी नजर आ रही होती है, और हमें लग रहा होता है कि अब ये बस जिंदगी के कोई आसार नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो शख्स मरा होता है, उसकी रूह बिल्कुल जैसे हम ख्वाब में इधर उधर घूमते फिर रहे होते हैं, काम करते फिर रहे होते हैं, उसकी रूह एग्जैक्टली उसी किस्म की सिचुएशन में कहीं और घूम रही होती है, लेकिन दुनिया में हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये शख्स मर गया है और अब इसकी जिंदगी के कोई आसार इसके अंदर बाकी नहीं है। ठीक है। अब कनेक्शन जो होता है, यानी कोई भी चीज जो है, जैसे आप देखें ना, जब हम फोन लेते हैं तो फोन का कनेक्शन चाहिए होता है ताकि वो काम करे। लैपटॉप होता है तो लैपटॉप को आपको कोई ना कोई पावर सप्लाई चाहिए होती है। तो ये कनेक्शन जो है, जो रूह और बॉडी का, यानी जिस्म और रूह का जो कनेक्शन है, इसके बारे में इब्नुल कय्यम रहीमुल्लाह जो है वो बताते हैं उनकी बुक के अंदर कि रूह जो है उसके 5 लेवल्स पे कनेक्शन होते हैं, जो कि डिफरेंट होते हैं नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशंस। सबसे पहले कनेक्शन क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है और उसके फिर कुछ महीनों के बाद जो है वो रूह फूंकी जाती है। ठीक है। बच्चा जब तैयार, यानी आप समझे कि सेकंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है और उसके बाद वो फिर उसके अंदर रूह फूंकी जाती है। सो उसके अंदर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि दिल धड़कने लग जाता है। ठीक है। पल्सेशन आपको अल्ट्रासाउंड पे आने लग जाती है और इमीडिएटली हम ये कहते हैं कि अब इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेज के रूह फूंक दी है। तो ये पहला कनेक्शन डेवलप होता है जिसके अंदर बच्चा माँ के पेट में और बच्चे के अंदर जो है वो रूह आ गई। ये पहला कनेक्शन। सेकंड कनेक्शन कब आपका रिवाइव होता है, जब बच्चा पैदा होता है। ठीक है। क्योंकि हमने ये बात की थी कि जो नफ्स है, वो जिस्म के अंदर जो रूह होती है वो नफ्स होता है, और नफ्स फिर हमें बैड या गुडनेस की तरफ लेके जाता है। लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस वक्त उसकी रूह जो है वो रूह का स्टेटस ही होता है, उस वक्त वो नफ्स के स्टेटस पे नहीं होती। लेकिन जब वो पैदा हो जाता है, जब उसकी अपनी एक अपनी जात होती है और वो बच्चा और उसकी रूह होती है, तो फिर वो नफ्स के स्टेटस पे आ जाता है। ठीक है। नंबर 3 जो है वो हमने ये बात की कि जो ड्यूरिंग स्लीप है, यानी जब सो रहा होता है इंसान, तो उस वक्त रूह आती जाती रहती है। मतलब ये कि आप जब सोते हैं तो वो छोड़ के चली जाती है कुछ कनेक्शन के साथ, और फिर जब बीच में लेट्स सपोज आप वॉशरूम के लिए उठे या पानी पीने के लिए या तहज्जुद के लिए या नमाज के लिए, तो फिर वो वापस अल्लाह ताला के हुक्म से वापस आती है। और फिर अगर आप दोबारा लेट जाते हैं तो फिर वो फिर चली जाती है। ठीक है। घूमने फिरने वो चली जाती है। सो ये एक अनयूजुअल कनेक्शन है नॉर्मल जो आपकी डेली हमारी जो रूटीन है उससे। चौथा स्टेप कब होता है कि जब डेथ हो जाती है इंसान की और रूह अपरेंटली हमें छोड़ के हमारे जिस्म को चली जाती है। लेकिन जब बरज़ख का टाइम शुरू होता है, जो हम आगे भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर रूह और बॉडी का कनेक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। वो ऐसा नहीं होता जैसे हमारा अभी करंटली है, जिसमें हमें पानी खाने पानी और इस तरह की चीजों की जरूरत है। लेकिन वो कनेक्शन जो डेथ के बाद होता है, उसमें बॉडी और रूह कनेक्टेड होते हैं, लेकिन किस तरह कनेक्टेड होते हैं वो अल्लाह की बात बेहतर जानती है। हमें उसके बारे में कोई एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि वो किस तरह कनेक्शन होता है। और पांचवी जो कनेक्शन है वो कब होगा, जब हम कब्रों से उठाए जाएंगे और उस वक्त फिर हमारे जिस्म और रूह बिल्कुल वैसे ही कंबाइन कर दिए जाएंगे जैसे अभी इस वक्त हमारे कंबाइन है। और उस वक्त जिस्म हमें नए मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब हड्डियां गल सड़ गई होंगी कब्रों के अंदर, तो जो हमारी कॉक्सिस बोन होती है, या जिसको आप टेल बोन कहते हैं, जो जब हम बैठते हैं तो बिल्कुल जो टिप होती है हमारी रीढ़ की हड्डी की नीचे, पॉइंटेड सी छोटी सी एक हड्डी होती है। जब खुदा ना खास्ता कोई अगर सीढ़ियों पे गिर जाए हिप्स के बल, तो उसकी वो हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। सो वो कॉक्सिस बोन जो है, उसको अल्लाह ताला जो है वो कब्रों में वो बोन नहीं गलेगी। वो हर जो मुर्दा जब से कायनात बनी, सॉरी इंसान बने हैं और टिल क़यामत, वो बोन्स जो है वो कब्रों में बाकी रहेंगी, बाकी सारी हड्डियां बाकी सब गल जाएगा। उस कॉक्सस बोन से जो है वो दोबारा अल्लाह ताला जैसे किसी बीज से दोबारा दरख्त खड़ा करता है, इस तरह उस कॉक्सस या टेल बोन से जो है वो अल्लाह ताला दोबारा हमें, हमारी बॉडी दोबारा नई बॉडी बनेगी और उसके अंदर फिर रूह आके प्रॉपर जैसे अभी हम यूनाइटेड हैं उस तरह फिर हम कब्रों से निकल आएंगे और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जाएंगे फॉर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। सो ये 5 स्टेजेस हैं। इसमें अब इम्पोर्टेंट चीज ये समझने की है कि जो दुनियावी जिंदगी है, इसमें हमारी जो रूह या जिसको हम नफ्स कहते हैं, वो हमारे जिस्म की जो जरूरियात हैं और ख्वाहिशात हैं उसकी ताबे हो जाती है, और उसके हिसाब से वो अच्छी रूह या बुरी रूह बन जाती है। ठीक है। यानी जो हमारी जिस्म की ख्वाहिशात हैं, खाना पीना, पैसा, सेक्सुअल डिजायर्स, ये जो इस दुनिया में हमारी रूह जो है कुछ लोगों की, वो इस जो जिस्म है उसकी ताबे हो जाती है, और उस हिसाब से वो अच्छी या बुरी रूह बन जाएगी। अगर ताबे हो जाएगी जिस्म के तो बुरी रूह बन जाएगी, और अगर नहीं होगी तो अच्छी रूह बन जाएगी। लेकिन जो बरज़ख है वहां उल्टा होगा।
वहां क्या होगा कि जो जिस्म है वो रूह का ताबे हो जाएगा। किस तरह कि अगर रूह अच्छी होगी, उसने दुनिया में अच्छी हरकतें की होंगी, तो बरज़ख के अंदर जो है वो जो जिस्म है उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं होगी, उस पर अजाब नहीं होगा, उसको तकलीफ नहीं दी जाएगी। यानी इस दुनिया में जो रूह है वो जिस्म के ताबे है, लेकिन जो बरज़ख है उसमें रूह के ताबे जिस्म हो जाएगा। यानी रूह ने अगर अच्छे काम किए होंगे, अच्छी रूह होगी, तो जिस्म सुकून में आ जाएगा बरज़ख में। और अगर रूह ने इविल डीड्स की होंगी तो फिर जिस्म मुश्किल में पड़ जाएगा। राइट। सो बेसिकली जो और जो जब क़यामत आएगी तो हमने वो बात की कि फिर आपकी हम सबकी जो रूह है और जो जिस्म है वो ज्वाइन कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद फाइनल फैसला होगा कि कौन जन्नत में जा रहा है या कौन दोज़ख। अब आ जाते हैं हम जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो बिलीवर है उसके मौत के वक्त, यानी एक जो मुसलमान है, और आइडियली इसमें मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कहूंगी। उसकी रीजन ये है कि अगली स्लाइड में हम देखेंगे जिसके अंदर मुनाफिक मुनाफिक जो है वो शख्स होता है बेसिकली जो कि जबान से कुछ और कहे और उसके अमाल या उसके दिल में कुछ और बात हो। ठीक है, तो जो बिलीवर का वर्ड जब मैं हम यूज करते हैं तो हम बेसिकली जो अच्छी नेक रूह हैं या नेक मुसलमान होंगे, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, उनकी बात करते हैं। ये एक लंबी हदीस है आगे, क्योंकि मेजोरिटी हदीस जो मैंने मेंशन की है वो लंबी हदीस थी, और इसमें है इस तरह के आपको सेम हदीस थोड़े से डिफरेंस ऑफ वर्ड्स के साथ मुख्तलिफ बुखारी, मुस्लिम, नसाई और इनमें मिलेंगी। तो उसमें से मैंने सिलेक्ट की है कुछ अहदीस जो मैं आपको साथ मेंशन करती जाऊंगी। ज़ईफ अहदीस थी वो मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं डाली, क्योंकि वो ज़ईफ हदीस हैं और उसको उसके साथ हम कोई कंफर्मेशन नहीं ले सकते। सो अहमद जो है इमाम अहमद की जो बुक है उसके अंदर 17803 हदीस है। इसका मफहूम मैं अब आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जो मोमिन होता है, यानी बिलीविंग स्लेव को उर्दू में मैं मोमिन का वर्ड ट्रांसलेट करती हूँ, जब उसकी रूह निकलने का वक्त आता है तो फरिश्ते जो हैं वो आसमान से आ जाते हैं, जिनके चेहरे सफेद होते हैं और इस तरह सफेद होते हैं बड़े खूबसूरत, जैसे सूरज की तरह चमकते हुए। वो अपने साथ जन्नत से कफन लेके आते हैं, यानी जन्नत से ही वो कफन आता है, और साथ में वहां का परफ्यूम, यानी जैसे जबरदस्त ऊद होते हैं ना आपके यहाँ पर, तो जन्नत का परफ्यूम वो फरिश्ते अपने साथ लेके आते हैं। और वो उस रूह के जो बॉडी है जिसकी जान निकलने वाली है उसके पास आके बैठ जाते हैं। अच्छा, ये हदीस सुनाते हुए मैं जरूर हम सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, और खुद भी मेरे दिल में ये है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी रूहों में शामिल करे, आमीन। कि हम जो पढ़ रहे हैं इस वक्त ऑब्वियसली हम सब ने जान देनी है, तो अल्लाह ताला हमें इस पॉइंट पे लेके आए कि हम इन रूहों में शामिल हों, आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। सो वो क्या होगा कि वो फरिश्ते जो हैं वो जब आके बैठेंगे उसके पास, तो दूर तक हद निगाह तक वो फरिश्ते ही नजर आते जाएंगे उसको, यानी हर तरफ उसको फरिश्ते नजर आ रहे होंगे। और फिर इसके साथ जो एंजल ऑफ डेथ है, यानी जो मौत के फरिश्ते हैं वो आएंगे, और वो उस रूह डेड बॉडी, सॉरी, जो अभी जिंदा है यानी जिसकी जान निकलने वाली है, उसके सरहाने पे बैठेंगे और बहुत प्यार से उनसे ये कहेंगे उस शख्स से कि ए खालिस रूह, यानी प्योर सोल, तुम अपने रब की रजा के साथ और उसकी माफी के साथ बाहर आ जाओ। ठीक है, बड़े प्यार से, जैसे आप किसी अपने बच्चे को उठाते हैं ना, सुबह बेटा उठ जाओ स्कूल जाना है, प्यार से, उस तरह बड़े मोहब्बत के साथ वो रूह से कहेगा कि तुम अपने रब की रजा के साथ बाहर आ जाओ। और उस जो शख्स है उसकी जो रूह है वो ऐसे सॉफ्टली उसके जिस्म से निकल आएगी जैसे मशकीजे से पानी गिरता है। यानी आप जैसे बॉटल या कूलर से या डिस्पेंसर से पानी निकालते हैं ना, उस तरह बिल्कुल जैसे ऊपर से पानी गिरता है उस तरह सॉफ्टली वो इजीली जो है वो निकल आएगी। और फिर ये सोल जैसे ही बाहर आएगी और जो मौत के फरिश्ते हैं वो उसको ग्रैब करेंगे, तो जो फरिश्ते हैं वो इमीडिएटली उनसे, जो बाकी जो आप समझेंगे जो असिस्टेंट्स आए हुए थे उनके, वो फौरन वो रूह अपने पास ले लेंगे और उनको जन्नत का जो कफन है वो पहना के और उसके ऊपर जन्नत का परफ्यूम लगा देंगे। ठीक है। और ये परफ्यूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इतना कोई जबरदस्त, इतना कोई हसीन परफ्यूम है, इतनी जबरदस्त इसकी खुशबू है कि ऐसी खुशबू कभी दुनिया में किसी ने नहीं सूंघी होगी। फिर वो इस रूह को लेकर आसमानों की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे आसमान, जो हमें आसमान नजर आ रहा है, इसकी तरफ वो जाना शुरू करते हैं, तो रास्ते में जितने फरिश्ते हैं वो उन फरिश्तों से सवाल पूछते हैं, क्योंकि जो मौत के फरिश्ते हैं, बिकॉज इज अ वेरी बिजी फरिश्ता, सो वो नहीं रुकते। वो मौत ये निकाल के रूह, और वो फिर आगे फर्दर अपने काम में चले जाते हैं, जो बाकियों की रूहें निकालनी है, जो बाकी जो फरिश्ते जो लेके आए थे कफन, वो फिर कैरी करके उस सोल को ऊपर ले जाते हैं। और फिर आसमान के रास्ते में जो छोटे दूसरे सॉरी फरिश्ते जो नजर मिलते हैं, वो पूछते हैं कि ये कौन है, ये इतनी खालिस सोल, इतनी खूबसूरत खुशबू वाली, ये कौन है। तो जो फरिश्ते जिन्होंने रूह पकड़ी हुई होती है वो उसको
हमको बाकियों को बताते हैं कि ये फलां बिन फलां है, यानी सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो, और ये बेहतरीन नामों से जो आपको इस दुनिया में लोग बुलाते थे वो नाम इस्तेमाल करेंगे कि ये वो नेक शख्स है। या जो जब आप हम किसी की तारीफ करते हैं दुनिया में तो हम बेस्ट नाम जो उस शख्स के लिए यूज करते हैं उन नामों से वो बुलाते हुए, इंट्रोड्यूस कराते हुए पहली जो आसमान जो हमें नजर आता है वहां तक पहुंचेंगे। जब लोएस्ट हेवन यानी जो पहला आसमान हमें नजर आता है, जब वहां पहुंचेंगे तो पूछा जाएगा कि कौन आया है, और वो फरिश्ते बताएंगे कि हम इस तरह नेक रूह को लेके आए, और आसमान का दरवाजा खुल जाएगा। और फिर हर आसमान पे आप समझें जैसे कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर जब जा रहा होता है तो उसकी आपने देखा ना गाड़ियों के प्रोटोकॉल होता है आगे पीछे, और बड़े जैसे प्राइम मिनिस्टर आया होता है तो उसको डिफरेंट मिनिस्टर्स रिसीव करने आते हैं और ब्यूरोक्रेट्स की हाई पोस्ट वाले लोग रिसीव करने आते हैं। तो इसी तरह उस रूह को पहले आसमान से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, सातवें आसमान तक लेके जाएगा, और हर आसमान के जो बेस्ट हाईएस्ट रैंक फरिश्ते होंगे वो प्रोटोकॉल करके वो साथ देंगे अगले आसमान तक छोड़ने जाने के लिए। ठीक है, जब सेवंथ हेवन यानी सातवें आसमान तक वो रूह पहुंचेगी, फरिश्ते उसको लेकर पहुंचेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा कि ये मेरा जो बंदा है इसका नाम इल्लियून या इल्लियीन जो है, जो हाईएस्ट रैंक है हेवन का, यानी जो बेस्ट लोगों के लिए जगह है, उसमें इलीन जो है उसको स्कॉलर्स कहते हैं कि ये आप समझे एक तरह का रजिस्टर है या कोई एंट्री टाइप, जैसे होता है ना हम को कहीं पर एडमिशन लेते हैं तो एंट्री होती है। तो इलीन जो है वो बहुत अच्छे नेक लोगों का एक समझे के रजिस्टर है, जिसके अंदर अल्लाह ताला कहेगा कि इसमें मेरे बंदे का नाम लिख दो और उसके बाद इसको वापस जमीन की तरफ भेज दो। अच्छा, मैसेजेस मैं बीच में नहीं पढ़ पाऊंगी। और क्वेश्चंस जो है ना वो हम ग्रुप में लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैसेजेस के साथ ही ये अभी काफी लंबी क्लास है। सो अल्लाह ताला ये कहेंगे कि इलीन में इनका नाम लिख दो, इसको जमीन पे वापस भेजो, क्योंकि मैंने इनको जमीन यानी मिट्टी से पैदा किया और ये वहीं पर वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे उस मुद्दत तक के लिए जबकि मैं इनको दोबारा उठाऊंगा। तो ये जो रूह है यानी जो नेक रूह है, ये इसका सेवंथ स्काई ऊपर तक गई, फिर वहां इसने अपनी रजिस्टर में एंट्री कराई, इलीन के रजिस्टर में अल्लाह ताला के हुक्म से, और फिर फरिश्ते उसको वापस छोड़ने के लिए आते हैं। इतनी देर में उसकी कब्र का इंतजाम हो चुका होता है। ठीक है, उसको नहला धुला के जो उसके जानने वाले हैं रिश्तेदार हैं वो उसको कब्र में दफना देते हैं, और ये जब रूह वापस आती है तो उसको वापस बॉडी में डाला जाता है, और जो बंदा है वो फिर उससे जो फरिश्ते हैं जो हम आगे पढ़ते हैं अभी वो आ जाएंगे सवाल करने के लिए। और ये वो टाइम होता है जब रूह को वापस जिस्म में डाला जाता है, जैसे ही आप दफना के और फिर मिट्टी डाल देते हैं ऊपर से, तो उस टाइम पे हमें डिफरेंट अहदीस हैं जिसमें पता चलता है कि जो इंसान है जो मुर्दा है वो जिंदा हो जाता है कब्र के अंदर, उसको वो रूह वापस उस तक पहुंच जाती है और वो फुट स्टेप सुन सकता है अपने रिश्तेदारों के उसको दफना के जाते हुए। ठीक है, और अभी वो फुट स्टेप सुन रहा होता है तो फिर उसके बाद फरिश्ते आ जाते हैं। लेकिन ये अगली स्टेप पर जाने से पहले पहले हम जरा जो मुनाफिक हैं और जो डिसबिलीवर्स हैं उनका हाल भी देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब डिसबिलीवर्स यानी जो मुनाफिक है या कुफार है उनके साथ क्या होगा, वही सारी है कि जी वो जान निकलने वाली है। अब ये जो इब्न माजा के अंदर 4262 हदीस है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एंजल्स हैं वो वहां ऊपर से जो असिस्टेंट वाले एंजल्स होते हैं वो आते हैं, और अगर वो इवल सोल है, ठीक है, तो वो उसको बड़े डांट के उसको कहते हैं कि बाहर आ जाओ इवल सोल, यानी खबीस, उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया जाता है कि खबीस सोल जो कि खबीस जिस्म के अंदर थी, बाहर आ जाओ, और तुम्हारे लिए अब जो खबर है आने वाली, जो टाइडिंग्स कहते हैं जो आने वाली आपको इन्फॉर्मेशन, या जैसे ग्लैड टाइडिंग्स खुशखबरी होती है, तो बैड टाइडिंग जो है वो बदखबरी टाइप चीज होगी, जिसमें वो हुजूर फरमाते हैं कि वो उनको उसको बताते हैं कि तुम अब आने वाले वक्त में उबलते हुए पानी, डर्टी वूंड डिस्चार्ज कहते हैं, पस जो हमारे किसी के खुदा खास्ता जख्म जो है वो सड़ जाता है और उसमें से पस निकलती है और डिस्चार्ज निकलता है, उसको डर्टी वूंड डिस्चार्ज कहते हैं। और इसके अलावा बहुत शदीद पनिशमेंट्स के लिए जो है ना वो उसको वो बता देते हैं कि अब तुम खबीस जिस्म में खबीस रूह तुम बाहर आ जाओ, और अब तुम्हारा वो वक्त आने वाला है जब तुम्हें उबलते हुए पानी, पस और मुख्तलिफ तरह की सजाओं का सामना करना पड़ता है। और फिर जो एंजल ऑफ डेथ हैं वो आते हैं, और वो जब रूह निकालते हैं, वो कोई प्यार मोहब्बत से कोई उससे बात नहीं करते, और जब वो रूह निकालते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो एग्जांपल दी है वो ऐसे दी है कि जैसे गीली जो रुई होती है उसके बीच में से आप कोई खारदार चीज घसीटें, या स्कॉलर्स ने इसको एग्जांपल इस तरह दिए कि जो सिल्क होता है, सिल्क का कपड़ा, वो अगर आप कहीं ऐसी खारदार झाड़ियां हो जहाँ पर कांटे ही कांटे हो, उसमें से जब आप सिल्क का कपड़ा घसीटते हैं तो वो जिस तरह घसीट के उसमें से निकाला जाएगा और फट जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा, उस तरह जो रूह है
وہ نکلے گی باہر جسم سے, جو کہ اکثر ہم سننے میں آتا ہے کہ جو موت کے وقت کی آزمائش ہے, کہ روح نہیں نکل پا رہے, روح پھنس گئی ہے, یا نزا کا وقت آ گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس حدیث کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, کہ بیسیکلی روح جو مومن کی ہے وہ بڑی تیزی سے نکل آتی ہے, جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے, لیکن جو ہپوکریٹ ہوگا یا ڈس بلیور ہوگا اس کے کیس میں روح پھنس جائے گی اور بہت مشکل سے نکلے گی. اس کے بعد صحیح جامی میں 1676 حدیث ہے. یہ اگین بڑی حدیث ہے, اس کا چھوٹا پیس, کیونکہ اس سے جو اوپر والا سیکشن تھا وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں دوسرے حدیث کے ریفرنس سے. اور پھر ہوگا یہ کہ یہ جو بدرو ہے, بدرو اس کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں, وہ والی بدرو نہیں ہے جو گھومتی رہتی ہے, یہ بدرو لائک بد الگ ہے اور روح لائک بیڈ سول, ٹھیک ہے. سو بدرو جو ہے, بیڈ سول جو ہے, یہ لے کے پھر جو ہے وہ یہ اوپر جاتے ہیں. اچھا, اس کا ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ڈرٹی ہوں گے, فاؤل اسمیلنگ ہوں گے, اور بہت گندے کپڑے, لائک جو ان کا کفن ہوگا وہ بہت اسمیلی ہوگا, بہت ریڈیکولس ہوگا, ٹھیک ہے. یہ جب فرشتے ان کو لے کے آسمان پہ چڑھتے ہیں ایسی روحوں کو, تو راستے میں سارے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی ایول سول ہے, یہ کس کو تم لے کے آئے ہو. اور پھر جو فرشتے ہیں وہ ورس ترین ناموں سے, جو جن کو یعنی آپ سوچیں کہ اگر سپوز کوئی زانی ہے یا کوئی قاتل ہے جس کو دنیا میں لوگ گندے ترین ناموں سے بلاتے تھے, اور اس نے توبہ نہیں کی مرنے سے پہلے, اور وہ اسی طرح پھر مر گیا, تو اس کو ورس ترین ناموں سے بلایا جائے گا. اور پھر جب پہلے آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے یہاں تک لے کے وہ پہنچیں گے فرشتے, آپ سمجھے کرس کرتے ہوئے, یا راستے میں آپ آسان الفاظ میں سمجھے کہ بڑی بےزتی ہوگی, تو جو فرسٹ ہیون والا یعنی جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ دروازہ نہیں کھولیں گے اس کے لیے, یعنی وہ ساتویں آسمان تک نہیں جائے گی روح. اس کو پہلے آسمان سے ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکم آئے گا کہ اس جو میرا یہ بندہ ہے اس کا نام سے جین, یعنی جو لوسٹ ہیل ہے, گندی ترین جہنم, اس کا جو رجسٹر ہے, یعنی ایک سمجھیں کہ ایک گڈ لوگوں کا رجسٹر ہے ایلین جن کا نام ہے رجسٹر کا نام, اور ایک بیڈ لائک کرمنلس کا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس میرے بندے کا نام سے جین میں لکھ دو. اور پھر یہ جو روح ہے اس کو واپسی پیار محبت سے پروٹوکول کے ساتھ نیچے نہیں لایا جائے گا, بلکہ اس کو آسمان کی ہائٹ سے زمین پہ پھینک دیا جائے گا, کاسٹ ڈاؤن یعنی اوپر سے پھینک دیا جائے گا, کیونکہ ذلالت کی انتہا ہو رہی ہے, بیسیکلی اس نے جو دنیا میں کمایا تھا وہ آگے بھگت رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ قبر کے اندر اتنی دیر میں اس کے گھر والے اس کو دفنا کے چلے جائیں گے, اور پھر وہ جو کوشچننگ آف گریو ہے وہ اسٹارٹ ہوگی. اچھا, اس میں ایک کوشچن مائنڈ میں اکثر اسٹوڈنٹس کے یہ آتا ہے, میں بھی جب پڑھ رہی تھی تو آیا کہ اب یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کو دفن کیا جا رہا ہے, ان لوگوں کا کیا جو بام بلاسٹ میں مر گئے, یا جو جن کی باڈی ہی نہیں ملی, یا جیسے ہندوز جو ہیں وہ جلا دیتے ہیں باڈیز کو, راکھ بن جاتی ہے اور پھر وہ راکھ جا کے پانی میں بہا دیتے ہیں, تو یا کوئی ایسی جس کی باڈی میوٹیلیٹ ہو گئی پوری, اس کا کیا ہوگا. تو اس کا جواب جو ہے وہ اسکالرز یہ دیتے ہیں کہ جو رب پہلی دفعہ باڈی بنا کے اس میں روح ڈال کے پیدا کر سکتا ہے, اور جو قیامت کے دن دوبارہ باڈی نئی ایک ہڈی سے بنا کے دوبارہ ہمیں کھڑا کر دے گا, اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ بکھری ہوئی جو اگر راکھ بھی ہے اس سے کیا وہ دوبارہ باڈی نہیں بنا سکتا. لیکن اگین یہ وہ انسین کی باتیں ہیں, یہ وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے جو وہی جانتا ہے, ہمیں نہیں جانتا, ہم نہیں جان سکتے, اور نہ ہماری اوقات ہے اس چیز کو سمجھنے کی. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی برن کر دیتا ہے باڈیز کو, یا وہ بام میں سارے اس کے پیسز بکھر جاتے ہیں, نہیں ملتی باڈی, تو ان دیٹ کیس اٹ از کمپلیٹلی اپ ٹو اللہ. وہ جیسے پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے وہ 100 دفعہ پیدا کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو اوور آل روح کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ ہر روح کے ساتھ ہی ہوگا, ٹھیک ہے, جو اچھی اور بری جو بھی ہیں اس کے حساب سے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں منکر نکیر اینڈ کوسچنز آف گریف. مجھے کیونکہ منکر نکیر کی کوئی تصویر نہیں مل سکتی تھی, تو اس لیے میں نے ایک قبر کی تصویر لگا دی ہے. بیسیکلی منکر نکیر جو ہیں ان کے بارے میں, یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے, اس کو میں نے بریک کیا ہے 3 پورشنز میں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. احمد جو امام احمد کی جو بک ہے اس میں والیوم 4 کے اندر 362 حدیث ہے, جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس سے ملنے 2 بلیک اینڈ بلو اینجلز, یعنی کالے اور نیلے جو اینجلز ہیں وہ آتے ہیں, اور ان کا نام جو ہے وہ منکر, المنکر اور النکیر ہے. اس میں ایک اور حدیث آپ کو کہیں پڑھنے کو میں نے بچپن میں کافی دفعہ پڑھی تھی, اور ابھی بھی میں نے اس کو نکالا تھا, جس کے اندر ان کا حلیہ بتایا گیا ہے فرشتوں کا, ٹھیک ہے, کہ وہ لمبے دانت ہیں اور وہ دانتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے زمین کو, اور آواز ایسی ہے. وہ ضعیف حدیث ہے, اس لیے میں نے اس کو ادھر مینشن نہیں کیا, کیونکہ آئی وانٹیڈ کہ جو بھی چیز میں آپ کو پڑھاؤں وہ اتھینٹک حدیث سے پڑھاؤں. تو اس لیے جو اتھینٹک حدیث ہے اس میں منکر نکیر جو دونوں فرشتے ہیں ان کا حلیہ نہیں بتایا گیا, صرف بلیک اینڈ بلو کلر بتایا گیا, اینڈ واللہ عالم کہ وہ پورے بلیک اینڈ بلو ہوں گے یا
आईज ब्लैक एंड ब्लू, आई डोंट। ठीक है, तो अच्छा वो क्या कहेंगे, वो जब आके जब रूह जो है वो आसमान से वापस आ जाएगी, तो अभी हम पहले बात कर रहे हैं मोमिन की। मोमिन की रूह जब अंदर आ जाएगी, इससे पहले जो है जब वो जाग जाएगा, जब मैंने बताया था कि उसको कदमों की आवाज आ जाएगी, तो उस टाइम पे एक जो कब्र है वो स्क्वीज करेगी पहले, और वो हर एक को करेगी, उसमें मोमिन और जो डिसबिलीवर है उसका फर्क नहीं होगा। कब्र जो है वो स्क्वीज करती है, यानी झिंझोड़ेगी, ठीक है, काफी जोर से स्क्वीज करेगी, और जो मोमिन है उसको फिर फौरन वो छोड़ देगी। और ये जो मोमिन है उसके लिए जो कब्र की जो झंझोड़ना है वो अनकंफर्टेबल होगा, दर्दनाक होगा, लेकिन कब्र उसको फौरन छोड़ देगी। ठीक है, ये उसकी सजा में इनका हिस्सा नहीं है, ये जस्ट एक समझें कि जैसे वेलकम हग देगी कब्र के, आओ बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ठीक है, सो जब फरिश्ते आके उसको बैठाएंगे और फरिश्ते उससे पूछेंगे, 3 क्वेश्चन पूछेंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, लेकिन इस हदीस के अंदर मेंशन है कि वो उस बंदे के बारे में पूछेंगे, यानी ब्रैकेट में ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछेंगे। और जो मोमिन होगा जिसने अपनी सारी जिंदगी कुरान शरीयत सुन्नत के हिसाब से गुजारी होगी, वो बड़े आराम से जवाब दे देगा कि जो हम कलमा पढ़ते हैं कि मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, यानी जो मोहम्मद हैं वो अल्लाह ताला के स्लेव हैं, गुलाम या अब्द हैं, और उनके रसूल हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के अब्द, यानी उसके उनके जो स्लेव या गुलाम और रसूल हैं। इस पे मुनकर नकीर जो है वो जवाब देंगे कि हमें पता था कि तुम ये कहोगे। और फिर जो उस शख्स की ग्रेव है, यानी उसकी कब्र है, वो इस कदर बड़ी कुशादा कर दी जाएगी, 70 क्यूबिट बाई 70, 70 बाई 70 क्यूबिट की कर दी जाएगी, और उसको रोशन कर दिया जाएगा। और फिर उससे वो फरिश्ते कहेंगे कि अब तुम सो जाओ। तो वो बंदा बड़ा खुश होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो, आप सोचे ना, एक बड़ा सा आपको रहने के लिए जगह मिल जाए फ्री में, तो आप खुश होते हैं। सो वो कहेगा कि क्या मैं वापस अपनी फैमिली के पास जाके ये बता दूं कि मेरे लिए इतनी रोशन और इतनी कुशादा जगह है। सो उस पे फरिश्ते उसको कहेंगे कि तुम किसी, ऑब्वियसली अगर मेल है तो उसको कहेंगे दूल्हे की तरह, ब्राइड ग्रूम, या फीमेल होगी तो उसको कहेंगे दुल्हन की तरह तुम सो जाओ, और कोई तुम्हें उस वक्त तक नहीं उठा सकेगा, तुम्हारी इवन डियरेस्ट फैमिली मेंबर्स भी तुम्हें नहीं उठा सकेंगे जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा। जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो फिर तुम इस जो तुम्हारी रेस्टिंग प्लेस है यहाँ से उठाई जाओ। इसी हदीस का थर्ड पार्ट जो है वो ये है कि जब ये फरिश्ते ये बात कर देंगे, तो उसके बाद जो शख्स है जो अभी कब्र के अंदर ही है, उसको एक और इंसान नजर आएगा जो बहुत खूबसूरत होगा। ठीक है, बड़ा हैंडसम फेस होगा, उसके प्यारे कपड़े होंगे, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होगी। और वो शख्स उससे पूछेगा, बल्कि वो जब शख्स आएगा तो वो खुशखबरी सुनाएगा कि तुमसे जिस चीज का वादा किया था उस खुशखबरी को तुम देख रहे हो, लाइक ग्लैड टाइडिंग्स तुम्हें जिस चीज की दी गई थी। तो ये जो शख्स है जो मुर्दा कब्र में जिसकी कब्र है, वो पूछेगा कि तुम कौन। इसके ऊपर जो शख्स जो जिसका जो नजर आएगा वो कहेगा मैं तुम्हारे नेक अमाल हूं। और उसको देख के, क्योंकि वो इतना अच्छा और इतना वो लाइक वेल ड्रेस्ड और वो सारा कुछ होगा, स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, आपको डोंट वरी, ले लें जो भी आपने इसके ऊपर स्क्रीनशॉट लेना है। सो उसके बाद वो शख्स कहेगा या मेरे रब, ए मेरे खुदा, जल्दी से क़यामत ले आए ताकि मैं अपनी जो फैमिली है और अपनी जो वेल्थ है, क्योंकि उसको बता दिया जाएगा बेसिकली, कब्र का हाल देख के उसको समझ आ जाएगी कि मेरे लिए आगे अच्छी जन्नत की बिशारत है बेसिकली, या जन्नत ऑब्वियसली मेरे लिए वेट करी। तो बड़ा एक्साइटेड होकर कहेगा कि अल्लाह ताला जल्दी से क़यामत ले आए ताकि मैं अपनी फैमिली से मिलूं, एंड सिंपली लाइक मैं उनको बता सकूं कि मैं कितना खुश हूँ एंड मैं कितना ब्लेस्ड हूँ। ठीक है, तो ये मोमेंट का हाल होगा। इसके बाद जो मुनकिर है, या जो काफिर है या मुनाफिक है, उसका क्या हाल होगा। कि जो मुनाफिक होगा उससे जब ये कब्र में सवाल पूछेंगे मुनकर नकीर, तो वो कहेगा कि मैंने कुछ सुना था कि लोग इस शख्स के बारे में, क्योंकि देखें मुनाफिक या डिसबिलीवर जो होगा वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी, देखें डिसबिलीवर तो स्ट्रेट अवे उसने इनकार किया, लेकिन जो मुनाफिक है ये वो शख्स होगा जो जुबान से अपने आप को मुसलमान कहता होगा, हदीस और कुरान की बातें भी करता है, उसको पता भी है, सुनी भी है, लेकिन उसने अमल नहीं किया उस पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से जिंदगी नहीं गुजारी, कुरान के हिसाब से जिंदगी नहीं गुजारी, और गुनाहों में जिंदगी गुजारी है। उसको ये आसान सा सवाल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल का वो जवाब नहीं दे सकेगा कब्र में, और वो कहेगा कि लोग कुछ कहते थे बट मुझे आई डोंट नो कि वो क्या कहते थे। और इसकी बात सुन के जो फरिश्ते हैं वो ये मुनकर नकीर वो कहेंगे कि हमें पता था तुम यही कहोगे। और उसके बाद क्या होगा कि सही वाला जो स्क्वीज है, यानी अजाब वाला जो कब्र का झंझोड़ना है, यानी कब्र उसको बकायदा ऐसे झंझोड़ेगी कि उसकी जो दोनों पसलियां हैं, दोनों तरफ की राइट और लेफ्ट साइड की पसलियां, वो आपस में घुस जाएंगी एक दूसरे के अंदर। जैसे आप समझें कि आप अपनी उंगलियों को जब हम आपस में बंद करते हैं दोनों हाथों को, तो इस तरह वो घुस जाएंगी आपस में।
ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ اسی طرح یہ قبر کا عذاب چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو دوبارہ نہیں کھڑا کرتا. اسی طرح داؤد کے اندر بھی ایک پارٹ آف حدیث ہے, اگین لمبی حدیث کا یہ نیکسٹ سیکشن میں نے لیا ہے, داؤد اور احمد کے اندر جو حدیث ہے اس میں سے, کہ ایسے شخص کی قبر میں ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جہنم سے, ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جہنم سے, جہاں سے جو جہنم کی آگ اور ہوا ہے گرم, ہاٹ ونڈس, وہ آئیں گی, اور پھر اس کو ایک شخص نظر آئے گا جو نہایت بدصورت چہرے اور گندے کپڑوں اور بدبودار کپڑوں والا ہوگا, اور وہ آ کے کہے گا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا تھا وہ بری خبر تم تک پہنچ گئی ہے. اور منافق یا ڈس بلیور جو ہے وہ کہے گا تم کون ہو, تمہارا تو چہرہ ہی دیکھنے کے قابل نہیں ہے, اتنے بدصورت ہو. تو وہ شخص آگے سے جواب دے گا میں تمہارے گناہ ہوں, میں تمہاری ایول ڈیڈ ہوں. اور اس موقع پہ پھر وہ جو کافر یا منافق ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ, یا میرے خدا رحم کرنا, قیامت نہ لا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ ٹریلر ہے تو آگے کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, سو کوشچنز جو ہیں وہ کیا پوچھے جائیں گے گریو کے اندر, اینجلز جو ہیں 3 سوال پوچھیں گے. تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہو از دس مین جو تمہیں بھیجا گیا, یعنی تمہارا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جو شخص تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ کون. ٹھیک ہے, سو یہ منکر نکیر کی سٹیج آ رہی. اس کے بعد پنشمنٹ آف گریو. اچھا, یہ ایک 2-3 حدیثیں تھیں جو بہت لمبی تھی, پہلے میں نے یہ پارٹ نہیں رکھا تھا پریزنٹیشن میں, بٹ آئی ریئلی وانٹیڈ کہ لوگوں کو یہ پتا چلے, کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں لوگ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ایک لمبی حدیث ہے, اس کے میں نے سیکشنز بریک کیے ہیں تاکہ ایزیلی سمجھانا آسان ہو جائے. یہ جو شروع کی حدیثیں ہیں, یہ جو تینوں میں مینشن کر رہی ہوں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ نبی کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کے اندر بیسیکلی دیکھا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ان کو وہ سو رہے ہیں اور 2 لوگ ان کو لینے کے لیے آئے ہیں, اور پھر وہ ان کو لے کے گئے ہیں آگے کچھ چیزیں یا کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور پھر وہ پہلے ساری انہوں نے سائٹ سینگ کی, اور اس کے بعد پھر فائنلی جو ہے نا وہ سائٹ سینگ کے بعد لوگوں نے ان کو ڈسکرپشن دی کہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو پہلا جو تھا اس میں کیا تھا, انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا اور دوسرا بندہ اس کے سر پہ کھڑا ہوا تھا, بڑا سا بولڈر یعنی بڑا سا راک لے کے, اور وہ کیا کر رہا تھا, یعنی یہ جو بیسیکلی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں حدیث کے سیکشنز, یہ اوریجنلی عذاب قبر ہوں گے جن لوگوں پر, وہ اس کی ڈسکرپشن. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ بڑا سا جو پتھر تھا اس کو اٹھا کے, جو بندہ لیٹا ہوا تھا اس کو سر کچل رہا تھا بار بار. ٹھیک ہے, جب سر کچل دیتا تھا تو وہ پتھر رول کر کے جاتا تھا, جو بندہ کھڑا ہوا تھا وہ واپس وہ پتھر اٹھا کے لاتا تھا, اتنی دیر میں جو بندہ لیٹا تھا جس کا سر کچلا ہوا تھا اس کا سر دوبارہ سے نارمل ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ پروسیس چلتا رہے گا ٹل قیامت. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا, what was this happening, تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو جس نے قرآن پڑھا یا قرآن یاد کیا, یعنی پڑھ کے یاد کر کے, یہ اس کو حفظ کر کے یا پڑھ کے, اور اس کے بعد یہ قرآن بھول گیا, اور اس نے جو یاد کیا تھا یا جو پڑھا تھا اس پہ اس نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کیا قرآن کو, اور پلس یہ کہ یہ فرض نمازوں کو چھوڑتا رہا, جس وقت فرض نماز کا وقت ہوتا تھا اس وقت یہ سوتا تھا. تو ایسے شخص کے لیے, یعنی یہ جو ساری میں نے آپ کو چیزیں کوالٹیز گنوائی ہیں, ان کے لیے یہ عذاب قبر ہوگا کہ وہ پتھر جو ہے اس سے بار بار سر کچلا جائے گا, اور سر جتنی دیر میں وہ پتھر بندہ دوبارہ اٹھا کے لائے گا. یعنی آپ لٹرلی اگر یہ جو پنشمنٹس ہیں ان کو امیجن کریں, تو ہم جب مختلف قسم کی موویز جس میں جو بڑا ڈریڈ فل قسم کے سینز دکھائے ہوتے ہیں اور اس میں سزا یا پنشمنٹ یا ٹورمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ وہ والے سینز ہمیں لگتے ہیں. بیسیکلی وہ سینز بھی انہی طرح کے جو ہمارے قرآن حدیث یا جو پاسٹ تورا یا بائبل کے اسکرپچرز تھے اس کے اندر جو پنشمنٹ آف گریو یا پنشمنٹ آف ہیل فائر کی ڈسکرپشن ہے, وہیں سے یہ پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کاپی کر کے یہ موویز کے اندر اس طرح کی پنشمنٹس اور چیزیں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد ایک اور جو شخص دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی جو ہے نا بیک پہ لیٹا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور ایک اور شخص جو ہے وہ کیا کر رہا تھا, ایک لوہے کا ہک تھا, جیسے آپ نے دیکھا جو مچھلی پکڑنے والا ہک ہوتا ہے, لائک وہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ مچھلی چھوٹی ہوتی ہے, لیکن بڑا سارا ہک لوہے کا. اور وہ کیا کر رہا تھا, وہ شخص جو لیٹا ہوا تھا اس کے منہ میں ڈال کے اس کا منہ چیر رہا تھا, لپ سے لے کر پیچھے تک, ناک سے لے کر اوپر تک, اور آنکھوں سے بھی لے کے سر تک, یعنی پورے منہ کے جہاں جہاں اوپننگز تھی وہاں پر وہ لوہے کا ہک ڈال کے اور اس کو چیر رہا تھا بیک آف ہیڈ تک.
اور پھر جب ایک سائڈ سے وہ چیر دیتا تھا اور دوسری سائڈ پہ آتا تھا تو اتنی دیر میں پہلی والی سائڈ پھر ٹھیک ہو جاتی تھی اور دوسری سائڈ کو وہ چیرتا تھا. تو آپ امیجن کریں کہ ہمیں تو شاید دانت میں کوئی چیز, اگر کوئی نوکیلی چیز پھنس جائے تو کتنا پین ہوتا ہے, تو اگر لوہے کے ہک سے چیرا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا, جو ان کو وہ وزٹ کے لیے لے کے گئے تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلتے ساتھ ہی پورا دن یہ جھوٹ بولتا ہے اور مختلف طرح کی لوگوں کے بارے میں باتیں پھیلاتا ہے, لوگوں کے بارے میں سلینڈرنگ اور اس قسم کی چیزیں, یعنی اپنی زبان کے ساتھ فتنہ پھیلاتا ہے. تو یہ وہ شخص ہے جس کا منہ چیرا جا رہا ہے ہر ڈائریکشن میں, اور یہ جو منہ کا چیرنا ہے یہ چلے گا ٹل قیامت. ٹھیک ہے, یعنی جب وہ مرا تب سے لے کے قیامت تک. اور دا پوائنٹ از دس کہ کیونکہ یوزلی کوئی بھی بندہ ایک گناہ تو کر نہیں رہا ہوتا, تو آپ امیجن کریں کہ اگر 2 3 4 5 کوئی گناہ کر رہا ہے اکٹھے, تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا, نمبر 3 والا جو انہوں نے دیکھا وہ ایک تندور جو ہے, تندور اردو میں ہمیں پتا ہے کس کو کہتے ہیں, جہاں روٹیاں لگتی ہیں اس ٹائپ کا, لیکن انگلش میں اوون ٹائپ ایک چیز ہوتا ہے, بیک کھلا اوون جو ہوتا ہے جیسے. اس میں انہوں نے دیکھا کہ برہنہ عورتیں اور مرد ہیں, اور جس میں نیچے آگ چل رہی ہے, اور آگ جب ان کو ٹچ کرتی ہے, نیچے سے آ کے لگتی ہے بہت بڑے تندور میں سے, تو وہ بہت چیخیں مارتے ہیں اور بہت روتے ہیں اور لاؤڈلی ان کی کرائز ہے. اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ زانی اور زانیہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے, مرد اور عورتیں دنیا. ٹھیک ہے, تو ان کی سزا جو ہے وہ اس طرح کے تندور میں ان کو ڈال دیا جائے گا جس کے اندر آگ بھڑک رہی ہو. اسی طرح بخاری کے اندر 7047 حدیث ہے جس کے اندر ایک اور شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ خون سے بھرے ہوئے ایک دریا کے اندر سوئم کر رہا ہوگا اور باہر نکلنے کی کوشش کرے گا, اور جب وہ بینک آف ریور تک پہنچے گا, یعنی بالکل نکلنے کے پوائنٹ پہ ہوگا, تو وہاں ایک اور شخص کھڑا ہوگا جس کے ہاتھ میں بہت بڑے بڑے پتھر ہوں گے, اور وہ اس شخص کے منہ میں پتھر ڈال دے گا, جس سے وہ آپ سمجھیں کہ ڈراؤن ہو کے پیچھے چلا جائے گا. اور پھر وہ جتنی دیر میں واپس آنے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا, تو پھر اس کے منہ میں جو پتھر ہیں وہ غائب ہو جائیں گے, اور یہ جو شخص کھڑا ہوا ہے یہ دوبارہ پتھر ڈال دے گا, اس کو اس خون کے فلتی دریا سے وہ باہر نہیں نکلنے دے گا. یہ شخص کون ہوگا؟ جو سود کھاتا تھا. ٹھیک ہے, اپنی زندگی میں لیز پہ گاڑیاں لینا, لیز پہ گھر لینا, مارگیج کرنا, یہ ساری چیزیں سود میں. ٹھیک ہے, سود جو بینک سے لون لیتے ہیں, ہاؤس بلڈنگ لون لے رہے ہیں آپ, مختلف بینک کے فائنانس سے, جو کمرشل بینک سے آپ لونز لے رہے ہیں, وہ سارے سود کی بیس پہ. یا کسی کو اگر آپ نے ادھار دیا اور اس کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ مجھے زیادہ پیسے واپس چاہیے, یہ سب سود ہے. تو سود کھانے والے کو قبر میں یہ عذاب ہوگا. اسی طرح احمد کے اندر بھی ایک 120 حدیث ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات, اچھا یہ جو پچھلی والی حدیثیں تھیں یہ ساری میں نے آپ کو وہ بتائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھی تھی, اور نبیوں کے خواب کیونکہ سچے ہوتے ہیں اس لیے وہ حدیث جو ہے اوبویسلی وہ ٹرو ڈپکشن دے رہی تھی. اسی طرح اسراء کے موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کے موقع پہ جہنم کا جو سارا سین دکھایا گیا تھا, اس میں حضور صاحب نے دیکھا کہ کوئی ایک شخص تھا جس کے ہونٹ جو ہیں وہ آگ کی کینچیوں سے, یعنی سیزرز آف فائر سے کاٹے جا رہے تھے دونوں سائڈ سے. تو جبریل علیہ السلام سے جب حضور صاحب نے پوچھا, تو جبریل علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ یہ وہ خطیب ہیں آپ کی امت کے جو لوگوں کو نیکی کا درس دیتے تھے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے, لیکن اپنے بارے میں وہ یہ چیزیں بھول جاتے تھے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھے. تو جو بھی ایسا شخص جو دوسروں کو گائیڈنس دے رہا ہے لیکن خود اس سے مستفید نہیں ہو رہا, اور لوگوں کو کچھ اور بات کر رہا ہے اور اپنی زندگی میں کچھ اور بات کر رہا ہے, یہ اس کے لیے سزا ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح ماجہ کے اندر 347 حدیث ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے, اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انفارم کیا, کیونکہ غیب کا علم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا, کہ قبروں میں جو 2 لوگ تھے ان کو عذاب ہو رہا تھا. اور پھر انہوں نے صحابہ کو بتایا کہ یہ دونوں جو قبریں ہیں جس میں یہ مردے ہیں, ان پہ عذاب جو ہے وہ کسی بڑی چیز کے لیے نہیں ہو رہا. ایک شخص جو ہے اس کے اوپر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ واش روم جب جاتا تھا تو پشی کرتے وقت وہ اپنے یورین سے اپنے کپڑوں اور جسم کی کنٹامینیشن, یعنی جو چھینٹے پڑتے ہیں اس کے اوپر احتیاط نہیں کرتا تھا, اور اس کی چھینٹیں پڑتی تھی کپڑوں پہ, اور وہ پھر اپنے آپ کو صاف نہیں کرتا تھا. اور جو دوسرا شخص ہے وہ ملیشیس گوسپ کہتے ہیں, گندی باتیں, فتنہ پھیلانے والی, لڑائی جھگڑا کرانے والی, تہمت والی باتیں ادھر سے ادھر, یعنی جو فتنہ کریٹ کریں, ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر. ٹھیک ہے, یہ وہ باتیں کرتا تھا. تو ان دونوں پہ بھی عذاب قبر ہوا تھا. اس لیے خاندان والوں کی باتیں بالکل ادھر کی ادھر نہ کریں, اور کسی سے وہ چیزیں بھی نہ پوچھیں جس سے آپ کا تعلق نہیں ہے, کسی جس سے آپ کا کنسرن نہیں ہے, وہ پوچھ کے اور اس کو پھر آگے سے آگے خاندان میں پھیلانے کے بارے میں بالکل نہ سوچیں, کیونکہ یہ عذاب قبر کا باعث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے احمد کے اندر, سعد ابن الاطوال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, انہوں نے فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا, اور انہوں نے
300 दिनार जो है वो विरसे में छोड़े थे। उनके बच्चे भी थे, तो जो ये सहाबी थे उनका दिल था कि ये उनके बच्चों पे ये 300 दिनार खर्च करें, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम्हारा जो भाई है वो डिटेन है। अच्छा, डिटेन का मतलब उसको रोक लिया गया है, लाइक उसकी प्रोसेसिंग, जैसे होता है ना कि आप वीजा डिटेन हो जाता है, इमिग्रेशन डिटेन हो गई है, कि रोक लिया है, फर्दर प्रोसेस नहीं हो रही चीज। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा भाई जो है उसके ऊपर कुछ कर्ज है, जिसकी वजह से उसकी जो आगे मतलब चाहे जन्नत या दोजख या अजाब या खुशखबरी की जो चीज है वो प्रोसेस नहीं हो रही, तो तुम उसका उधार पहले चुकाओ, ताकि वो जो है जो भी उसकी मंजिल है वो उसकी तरफ आगे बरज़ख में चल पड़े। साहबी कहते हैं कि मैंने जो है वो सारा उधार जो भी उसका देने वाला था वो चुका दिया, लेकिन कोई औरत थी जिसने 2 दिनार का क्लेम किया कि मेरे 2 दिनार देने वाले हैं, और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उस औरत के पास प्रूफ नहीं है, जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि उसको जो 2 दिनार हैं वो उसको दे दो, क्योंकि वो सच बोल रही है। इस हदीस से पता ही चलता है कि अगर मरने से पहले मेरे आपके ऊपर किसी का उधार है, और खुदा ना खास्ता हम मर गए और हमारा उधार रह गया, किसी को हमने पैसे वापस करने थे, तो हम बीच में फंस जाएंगे, हमारी जो प्रोसेसिंग है वो रुक जाएगी, आपकी इमिग्रेशन जो है वो टुवर्ड्स जन्नत रुक जाएगी, आप लटके रह जाएंगे। सो डेट जो है यानी जो उधार है वो आपने हर हाल में एज क्विक एज पॉसिबल उतारना है। इसी तरह मुस्लिम के अंदर एक हदीस है जिसके अंदर जो इसरा मिराज के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैंने जन्नत में एक औरत देखी जिसके पास एक बिल्ली थी, ये हम सब ने बड़ी मशहूर हदीस से सुनी हुई है, कि उस बिल्ली को वो खाना नहीं देती थी, उसको बांध के रखती थी और उसको आजाद नहीं छोड़ती थी। एक तो खुद भी खाना नहीं देती थी और उसको आजाद भी नहीं छोड़ती थी कि वो इधर उधर से जाके कुछ खा ले, और वो बिल्ली भूख से मर गई। सो उस जानवर, इससे हमें हुकूकुल ऑफ नहीं, लाइक राइट्स ऑफ एनिमल्स पता चलते हैं, हुकूकुल जानवर कहेंगे उसको, जो भी कहेंगे, ठीक है, वो पता चलते हैं कि अगर आपकी गलती से आपका कोई, आपने जबरदस्ती बांध के रखा है, यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर पेट्स, और वो मर जाते हैं, तो ये चीज आपको जहन्नुम में, मुझे आपको खुदा नास्ता जहन्नुम में लेके जा सकती है। इसी तरह एक और कोई शख्स उन्होंने देखा जिसने एक कर्व्ड स्टाफ, कहते हैं एक, लाइक जैसे हम वॉकिंग स्टिक होती है कर्व सी उस तरह की, और वो क्या करता था, उसको उन्होंने देखा कि वो जहन्नुम में अपनी आंतें, उसकी आंतें जो इंटेस्टाइन होती हैं वो पेट से बाहर लटकी हुई थी सारी, पेट कटा हुआ था, खुला हुआ था, उसमें से आंतें लटक रही थी, और वो उन आंतों को आग में घसीटता लेके अपने पेट के साथ साथ घूम रहा था। और उसका जुर्म क्या था, कि उसने क्या गुनाह किया था, कि वो बेसिकली, इसमें जिक्र तो हाजियों का है कि हज पे जब लोग जाते थे तो वो क्या करता था, वो अपनी जो स्टिक थी उससे उनकी कीमती चीजों में फंसा लेता था। अगर कोई उसको पकड़ लेता था तो वो कहता था वो सॉरी ये गलती से फंस गई है, और अगर नहीं पकड़ा जाता था तो वो उनकी चीजें चोरी कर लेता था, मोर लाइक अ पिक पॉकेट, चोर बेसिकली। तो इसका मतलब ये है कि जनरली अगर चोरी भी कोई करता है शख्स और लोगों के माल को बातिल तरीके से खाता है, तो उसमें जो है वो ऑटोमेटिकली ये भी आपकी उसमें रूलिंग्स के अंदर जहन्नुम में ले जाएगा। असर की नमाज का पूछा है, आई थिंक 15 मिनट्स हमें और लगेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मेरे पास अजान शुरू हुई है होना। अच्छा जी, हम क्विकली आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्विकली जो है वो इसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। अगर बीच में आप लोग एग्जिट करके पढ़ना चाहते हैं, या इसको बेशक चलती रहे क्लास, आप नमाज पढ़ना चाहें तो नमाज पढ़ के आ जाएं, और फिर वापसी आके आप ज्वाइन कर लें इसको। ठीक है, सो एक और जो हदीस है उसके अंदर ये कि एक शख्स था जो कि बहुत मगरूर था अपने बालों की वजह से और अपने फाइन क्लोथिंग यानी अपने कपड़ों की वजह से, और वो बड़ा एक अपने कपड़ों को लेके मगरूर वॉक किया करता था। ऐसे शख्स के लिए सजा ये थी कि उसको सिंक कर दिया गया, यानी जमीन के अंदर धंसा दिया गया, और ये धंसना जो है जमीन के अंदर ये जारी रहेगा जब तक क़यामत आएगी। ठीक है, इसी तरह एक और बंदे की बात हुई जिसने जो खैबर की जो वो होता है माले गनीमत होता है खैबर की जंग के बाद, उसमें से जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था उसमें से एक कोई गारमेंट, उसने कोई गाउन जो है वो चोरी किया था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में कहा कि वो आई कैन, मतलब ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने उनको इन्फॉर्म किया कि वो शख्स वो गाउन पहन के जहन्नुम में जल रहा है। यानी अगेन चोरी की जो चीज है, जो माल आपने बातिल तरीके से किसी का हत्या है, वो बाइसे अजाब कब्र भी होगा और अजाब जहन्नम भी होगा। अच्छा, लास्ट ये हदीस है इसके अंदर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग जो है वो पाँव के बल लटके हुए हैं और उनके मुंह कटे हुए हैं जिसमें से खून टपक रहा है। और जब उन्होंने हमने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उनको बताया गया कि ये वो हैं जो अपना रोजा वक्त से पहले तोड़ देते थे। ठीक है, सो ये इब्ने अबान और अल हाकिम के अंदर हदीस मौजूद है, ये हमने क्विकली देख ली। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लाइफ इन बरज़ख के ऊपर।
ये जो पिछले वाला सेक्शन था ये जरा थोड़ा हैवी ड्यूटी था, जो लाइफ इन बरज़ख है ये अब आगे थोड़ा सा बेहतर, आपको थोड़ा लाइटर मोड में आ जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो बरज़ख की जिंदगी है वो इस दुनिया की जिंदगी से बहुत डिफरेंट है, इसलिए बरज़ख के अंदर कोई खाना पीना, कोई वॉशरूम जाना, कोई सेक्सुअल डिजायर्स, ये कुछ नहीं होगा। वहां की जिंदगी बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। और जो कब्र है उसके बारे में ये कहा जाता है कि कब्र आपका ट्रेलर है जो आगे आने वाली फिल्म है, यानी जो रेजरेक्शन, दोबारा जिंदा किए जाने, क्यामत वाले दिन के बाद जो इटर्नल लाइफ हमारी स्टार्ट होगी, हमेशा की जिंदगी, उसका ट्रेलर जो है ना वो आप कब्र में देख लेते हैं। इसलिए अगर कब्र के अंदर सुकून है तो इसका मतलब है आने वाली जो चीज है, आने वाली जिंदगी जो फिल्म होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। और अगर कब्र के अंदर वो कोई हॉरर फिल्म का ट्रेलर चल रहा है या कोई पनिशमेंट या इविल डेड टाइप ट्रेलर चल रहा है, तो वो आने वाला जो वक्त है, इटर्नल लाइफ की जो पूरी फिल्म है, वो बहुत भयानक होगी। ठीक है, इस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया कि जो रूहें हैं वो फौजी दस्तों की तरह हैं, यानी वो एक दूसरे को पहचानती हैं। और ये किस तरह होती है इसका मैं मफहूम पढ़ रही हूँ बेसिकली ये हदीस का, कि जो इस दुनिया में आपस में जिनको एक लगाव फील होता है, या जो इकट्ठे अपने आप को फ्रेंड्स जिनको हम कहते हैं, जिनसे आपको अट्रैक्शन फील होती है कि हमें इनके साथ हैंग आउट करना चाहिए, ये बेसिकली वो रूहें होती हैं जो पहले भी जो आप समझें कि आलम अरवा, जो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था और उसके बाद फिर वो रूहें सारी बनी थी, जो रूहें पैदा होने से पहले वहां पर भी एक दूसरे को जानती हैं, और फिर वही अट्रैक्शन इनको दुनिया में आके होती है। और इसी तरह जिनसे आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट फील होती है, या जो आपको होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि अच्छे नहीं लगते, मुझे घबराहट होती है इसके पास, सो ये वो रूहें हैं जो इवन आलम अरवा में भी एक दूसरे से रिलक्टेंट थी। ठीक है, तो वहां पर भी जो रूहें थी वो लाइक गैंग्स थे, इकट्ठे हैंग आउट करती थी, और फिर वो दुनिया में जब आती हैं रूहें तो वो बेशक एक दूसरे को ना जानती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप किसी शख्स, किसी दोस्त से, किसी लड़की से मिलती हैं हम लोग, लाइक ऑब्वियसली फीमेल्स हैं, तो आपको पहली मुलाकात में वो बहुत अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मैं मुझे लग नहीं रहा कि हम पहली दफा मिले। ठीक है, तो वो पहली दफा इसलिए नहीं मिले हुए लग रहा होता है, ऑल्दो कि इसमें धोखा भी होता है, कभी कभी आपको रियल पिक्चर बाद में पता चलती है, वो पहली दफा में बहुत स्वीट लग रहे होते हैं लोग, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बहुत ही अंदर से दो नंबर थे। लेकिन ये कि जनरली जिनके साथ आप हैंग आउट करते हैं या जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, ये वो रूहें हैं जो एक जैसी होती है। ठीक है, इसी तरह सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 69 है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जो लोग अल्लाह और रसूल की अताअत करेंगे तो वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, और वो कितने अच्छे साथी हैं। ठीक है, इस सूरह निसा के अंदर आयत 69 में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि जो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी जो रूहें है वो, और जो सहाबा कराम हैं, यानी जो बेस्ट लोग हैं, उनकी रूहें इकट्ठी हैंग आउट करेंगी, यानी वो दुनिया में भी इकट्ठे थे और वो आखिरत में भी इकट्ठे होंगे। इसी तरह सूरह नहल की आयत नंबर 32 है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी रूहें फरिश्ते ऐसी हालत में कब्ज करते हैं कि वो पाक साफ होते हैं, और उनसे कहते हैं सलामती हो तुम पर, जो अमल तुम करते रहे हो उसके सिले में जन्नत में दाखिल हो जाओ। ठीक है, सो ये बेसिकली रूहों की बात हो रही है कि बरज़ख और इसके बाद जो ओवरऑल है उसमें बरज़ख की लाइफ में, ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि रूहें क्या मिलती हैं आपस में या नहीं, लेकिन बरज़ख के अंदर जो है वो एक जैसी जो सोल्स होंगी, जो अच्छी सोल्स हैं वो इकट्ठी होंगी, वो एक पेज पे होंगी, समझे, एक वो मिलेंगी भी, और वो इकट्ठे हैंग आउट करेंगी, और जो बैड सोल्स हैं दे विल बी टुगेदर। ठीक है, इसी तरह से तिरमिजी और माजा के अंदर एक हदीस है कि हुजूर साहब ने फरमाया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि जो कब्र है वो पहली स्टेज है आखिरत की, और जो पहली स्टेज में बच गया तो उसके बाद आने वाला जो वक्त है वो उसके लिए आसान होगा, और जो पहली स्टेज में, यानी जो ट्रेलर जिसका भयानक हुआ, जो पहली स्टेज में फंस गया, उसके लिए आने वाला वक्त बहुत भयानक होगा। और यही रीजन है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के अंदर जो हम दुआएं जो पढ़ते हैं उसमें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व अज़ाबि जहन्नम वमिन फितनतिल माया वल ममाती वमिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, ये जो पूरी हम दुआ नमाज में भी दुरूद इब्राहिमी के बाद पढ़ते हैं, उसकी रीजन यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती, जो कि नबी तो मासूम होते हैं और नबी ऑब्वियसली गुनहगार नहीं होते, या हमारी तरह जो उनकी मतलब वो नहीं होती, शर पसंद जो एक तबीयत होती है, तो अगर वो अपने लिए अजाब कब्र और अजाब जहन्नुम से पनाह मांगते थे, तो फिर हम कौन से, सिंपली लाइक इफ यू से, कौन से खेत की मूली हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है वो ये कि क्या रूहें बरज़ख में मिलती हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर्स का, क्योंकि ये जो हदीस है नसाई के अंदर, इसको कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सही हदीस है, इसको उसको ऑथेंटिक कहते हैं, और कुछ स्कॉलर्स इसको ज़ईफ कहते हैं। मैंने मेंशन इसलिए कर दिया है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन
एट द एंड ऑफ द डे क्या फर्क पड़ता है, मतलब जब मर जाएंगे तो फिर देखा जाएगा कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जो भी है बहरहाल। लेकिन मैंने आपको इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपकी नॉलेज में हो कि नसाई के अंदर ये हदीस है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सोल को बेसिकली जब वो ऊपर लेके जा रहे होते हैं सातों आसमान पे, तो वहां पर कहीं पर जो है ना वो बाकी सोल्स उनसे अच्छी वाली जो होती हैं उनसे मुलाकात होती है, और वो सोल्स जो रूहें हैं वो एक दूसरे को कहती हैं, जैसे हम होता है ना कोई बंदा सफर से आता है तो हम उसको कहते हैं यार इसको आराम करना है तो अभी तंग नहीं करो, उस तरह रूहें कहेंगी कि लेट हिम रेस्ट, इसको अभी ये बेचारा नीचे से अभी ऊपर आ रहा है सीढ़ियां सीढ़ियां चढ़ के, तो इसको आराम करने दो। लेकिन फिर उनको टेंशन भी होगी, तो वो पूछेंगे कि उसका क्या हुआ, वो फलां का क्या हुआ। अच्छा, इस हदीस को अगर आप ऑथेंटिक मानते हैं तो डेफिनेटली इससे हमें ये पता चलता है कि जो रूह है उसको मरने के बाद ये नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये इससे आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो बस्ट हो जाएगा। जो लोग कब्रों पे जाके दरगाहों पे जाके मांगते हैं और उनका ख्याल है कि जो इंतकाल कर चुके हैं बुजुर्ग, वो शायद उनको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो रूहों को नहीं पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट हैपन टू सो एंड सो, फला का क्या हुआ, तो वो बंदा जो नीचे से मार के जिसकी रूह गई है वो बताएगा कि जी वो तो अच्छा नेक बंदा था। फिर वो पूछेंगे उसका क्या हुआ, वो फला बहन भाई का क्या हुआ, तो वो जो रूह है वो कहेगी वो आया नहीं, यहाँ नहीं पहुंचा, लाइक अच्छे लोगों की रूहों वाली कंपनी में नहीं पहुंचा। तो वो कहेंगे नहीं इधर हमारे पास तो नहीं आया, इसका मतलब ये कि अगर वो इधर नहीं आया तो इसका मतलब ये कि वो बैड वाले जो हेल वाले रूहों वाले सेक्शन है उसमें चला गया, ठीक है। सो ये एक हदीस है जिसके ऊपर थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट है स्कॉलर्स का। इसके अलावा बुखारी में एक हदीस है जो कि ऑथेंटिक है, जिसमें हजूर ने फरमाया कि जो इंसान है वो जिनसे मोहब्बत करता है वो उन्हीं के साथ होगा, यानी यू विल बी विद दोज whom यू लव। और ये कहाँ कहाँ होगा, ये दुनिया में भी होगा, यानी दुनिया में आपने जिनसे दोस्तियां लगाई हुई हैं वो बरज़ख में भी आप उन्हीं के साथ होंगे, और क्यामत के दिन भी आप उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे, ठीक है। और जन्नत दोजख में भी आप उन्हीं के साथ होंगे। तो इसलिए इसीलिए कहा जाता है कि फ्रेंड्स बहुत केयरफुली चूज करें, क्योंकि ये हमारे दोस्त होते हैं जो हमें जो है वो किसी अच्छी सोबत में किसी अच्छी चीज में लगा सकते हैं या किसी बुरी चीज में लगा के गुनाह में खुद तो कब्र में जाएंगे और अजाब भुगतेंगे, लेकिन जो अपने साथ बाकी लोग हैं उनको भी वो कब्र में अजाब कब्र की तरफ ले जाएंगे। और जो अच्छा दोस्त होता है वो खुद तो ऑब्वियसली अल्लाह को याद करता है, वो खुद अपने लिए फायदा कर रहा है, लेकिन वो अपने साथ कंपेनियंस को भी खींचता है। और इस तरह ये कि वो दुनिया में भी अच्छाई की तरफ रहेंगे, वो कब्र बरज़ख की जिंदगी में भी अच्छाई की तरफ रहेंगे, और वो फिर इटर्नल लाइफ में भी इंशाल्लाह जन्नत के हकदार इकट्ठे ही होंगे वहां पर। इसके अलावा सूरह अल इमरान के अंदर जो है वो आयत नंबर 169 से 170 जो है वो हम देखते हैं। इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं और ए पैगंबर जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए हैं इन्हें हरगिज मुर्दा ना समझना, बल्कि वो जिंदा हैं, इन्हें अपने रब के पास से रिस्क मिलता है। अल्लाह ने उनको अपने फजल से जो कुछ दिया है वो इस पर मगन है, और इनके पीछे जो लोग अभी इनके साथ शहादत में शामिल नहीं हुए इनके बारे में इस बात पर भी खुशी मनाते हैं कि जब वो इनसे आकर मिलेंगे तो वो इन पर कोई खौफ तो ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। वो अल्लाह की नेमत और फजल पर भी खुशी मनाते हैं और इस बात पर भी कि अल्लाह मोमिनों का अजर जाया नहीं करता। इस जो आयतें हैं ये तीनों आयतें, इससे हमें पता चलता है कि जो शोहदा की बात हो रही है यहाँ पर, कि इस वाली जो सेक्शन है कि जब इनके बारे में इस बात पर भी खुशी मनाते हैं कि जब वो इनसे आकर मिलेंगे, इस पॉइंट को भी जो है वो स्कॉलर्स कहते हैं कि दैट मीन्स कि जो नेक रूहें हैं, देखिए जो बद रूहें हैं ना उनका प्रॉब्लम ये है कि वो तो बेचारी अपने अजाबे कब्र में फंसी होंगी, तो वो तो किसी से मिलने जुलने का कोई चांस ही नहीं है। बात जो मिलने की हो रही है बरज़ख में वो नेक रूहों के बारे में हो रही है, ठीक है। तो नेक रूहों के बारे में अगेन हम दोनों ऑप्शंस में से जो आपको लगता है अल्लाह अल्लाह को बेहतर पता है कि मिलती हैं या नहीं मिलती, मुझे ऐसा लगता है कि इट डजेंट मैटर मिलती हैं या नहीं मिलती, क्योंकि जब आप मर गए तो फिर अपने लिए सिर्फ आपको ये जरूर दुआ करनी चाहिए कि अपने और अपने अहलो याल के लिए कि हमें अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से महफूज रखे, ठीक है। सो ये है। अब इसके बाद हम बिल्कुल अब हम थोड़ा एंड की तरफ पहुंच रहे हैं, हमारी खत्म होने वाली इंशाल्लाह क्लास। प्रॉफिट्स और जो शोहदा हैं उनका क्या स्टेटस है, ठीक है। सो इसमें सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 154 है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हों उनको मुर्दा ना कहो, दरअसल वो जिंदा है मगर तुमको इनकी जिंदगी का एहसास नहीं होता, ठीक है। सो बेसिकली हमेशा देखिए कि जब हम ये कहते हैं कि जो शोहदा हैं और जो प्रॉफिट्स हैं वो जिंदा हैं, तो इट डजेंट मीन कि वो हमारी तरह, जैसे हम मैं और आप बैठे हुए इस वक्त हमारी तरह जिंदा है और अब हमें गर्मी भी लग रही होती है और हमें भूख भी लग रही होती है और हमें वॉशरूम भी जाना होता है। इनकी जिंदगी जो है ना वो इट्स डिफरेंट, इट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। वो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कैसी जिंदगी है, लेकिन हम उनको हमारे लिए वो अगर लेट्स सपोज के आप ये सोचें कि जो है वो शहीद कब्र में बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रहा होगा, तो नहीं, ये ऐसी जिंदगी नहीं है।
ٹھیک ہے. یہ اس کی کوئی اپنی ڈیزائرز ہوں گی یا اس کو کوئی بھوک لگی ہوگی، ایسا نہیں ہے. یہ ایک زندگی ایسی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ وہ کس طرح، کون سے لیول پہ کس طرح سے زندہ. ایون اس کو سائنس بھی کوئی اس کے اوپر آبویسلی، کیونکہ سائنس تو ابھی سول کو ہی نہیں جسٹیفائی کر سکی پراپرلی. تو یہ ساری چیزیں علم الغیب میں حدیث ہے اس کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہدا ہیں، اچھا شہدا کے اوپر بہت ساری حدیث ہیں، لیکن اس میں سے ایک یہ جو اتھینٹک تھی وہ میں نے آپ کے لیے نکالی ہے کہ یہ بیٹھے ہوں گے، شہدا جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے بینکس آف ریور، یعنی جو دریا ہوں گے جو جنت سے نکل رہے ہیں اس کے دروازے سے باہر، گیٹ سے باہر، اس کے ساتھ ایک ہرے رنگ کے ٹینٹس، گرین ٹینٹس میں بیٹھے ہوں گے، اور ان کا جو کھانا پینا ہے وہ جنت کے اندر سے آ رہا ہوگا. یعنی کچھ احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ شہدا جنت کے اندر پرندوں کی طرح ہوں گے. کچھ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بینکس آف ریور ہیں جو گیٹ سے باہر ہیں وہاں اس جگہ پہ کہیں ان کی سیٹلمنٹ ہے. لیکن واللہ عالم کی کون یہ کس طرح ہے اور کیا ہے، اور ہماری سوچ سمجھ سے باہر ہیں چیزیں. اسی طرح پروفٹس اور جو شہدا ہیں وہ ہم نے یہ بات کر لی کہ وہ زندہ ہیں، لیکن وہ ہماری طرح زندہ نہیں ہے. ان کی فیلنگز، ایموشنز وہ والا چکر نہیں ہے، کھانا پینا اور بیگم بچوں والا ایسا کوئی سین نہیں ہے. اس کی ہمیں ریزن کس طرح ملتی ہے کہ جو اسرا اور معراج کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کر کے جا رہے تھے تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے نظر آئے. اس کے بعد جب وہ مسجد الاقصیٰ پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی بھی. اور پھر جب وہ معراج کے موقع پہ آئی تھنک چھٹے آسمان پہ جب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں پر بھی ان کی ملاقات ہوئی. یعنی ایک رات میں ہی 3 ڈفرنٹ لوکیشنز کے اوپر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے. دیٹ مینس کہ یہ کوئی ایسی ڈائمینشنز ہیں جو کہ ہماری عقل اور ہماری فزکس سے کوئی بالکل آزاد ہیں. ہماری جو کانسیپٹس آف ٹائم اینڈ اسپیس ہے اس سے اس میں یہ نہیں سیٹل ہوتی، اس لیے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، کہ ایک رات میں وہ 3 ڈفرنٹ لوکیشن پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں یا سلام بھیجتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جواب دیتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اپنی قبر کے اندر جو ہے وہ بالکل جیسے ہم زندہ ہیں اس طرح زندہ ہیں. بیسیکلی جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی بھی اگر شخص جو ہے وہ سلام یا درود بھیجتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو فرشتے وہ لے کے برزخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کسی کو نہیں پتا. جو برزخ میں چلا گیا اٹس اے ون وے ٹریفک، اس کو کچھ نہیں پتا کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. صرف جو سلام ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے، وہ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ایون جب ابھی ہم آگے جو ایٹیکیٹس آف وزٹنگ گریوز پڑھیں گے تو اس کے اندر جو نارمل قبرستان میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے مردوں کو سلام کرنا ہوتا ہے. سو اسکالرز سے کہ جو مردے ہیں وہ صرف سلام سن سکتے ہیں، اور ان کی جو ہیئرنگ ہے وہ نارمل میری اور آپ کی طرح لائک وہ لیکچر نہیں سن سکتے یا کوئی قبر کے کنارے بیٹھ کے باتیں کرے کہ اب میرا بیٹا ہو گیا اور میرا بیٹا جوان ہو گیا اور ایسے ہو گیا ایسے، وہ کچھ نہیں سنائی دیتا. دے جسٹ ریسیو دا سلام. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم درود بھیجتے ہیں تو وہ درود جو ہیں وہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جاتے ہیں. ہماری آواز ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے، کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا کیا چیزیں جو ہے وہ فائدہ دے سکتی ہیں. جن کے پیرنٹس، میری اپنی مدر جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کی جو اعمال ہیں وہ ختم ہو جاتے، رک جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے. ایک صدقہ جاریہ، اس کے علاوہ جو اس نے اچھی بینیفیشل نالج، علم جو ہے وہ آگے پہنچائی ہوتی ہے، یا ایک جو اولاد جو ہے، جو نیک صالح اولاد ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے. اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ جو کسی کے اگر پیارے جن کا انتقال ہو چکا ہے آپ ان کے لیے دعا کریں، یہ سب سے ضروری ہے. دعا، بہت طاقت ہے دعا کے اندر، ان کی مغفرت کی، ان کے عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھنے کی، ان کے درجات بلند کرنے کی. اس کے علاوہ صدقہ جاریہ ان کے لیے کر سکتے ہیں ہم. کوئی کنواں کھدوا دیا، کہیں ہینڈ پمپ لگوا دیا، کہیں غریبوں کو کھانا کھلا دیا ان کے نام پہ، قرآن کی کاپی کوئی مصحف دے دیا، کہیں ویل چیئر دے دی ہاسپٹل میں، کوئی اس قسم کے کام. ٹھیک ہے، تو وہ جب تک وہ چیز چلتی رہے گی تب تک اس کا ثواب ہمارے پیاروں کو جاتا رہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اپنا عمرہ حج اپنے حصے کا کر چکا ہے تو وہ اپنے ڈیسیزڈ پیاروں کے لیے عمرہ اور حج ان کے نام کا کر سکتا ہے، اس کا ثواب بالکل ان تک پہنچے گا. اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے یا آسان الفاظ میں منت کوئی مانی تھی کہ میں لیٹ سپوز کہ اتنے مریضوں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی، اور پھر مدر کا انتقال ہو گیا، تو پھر ان کی جو وعدہ ہے یا ان کی جو منت ہے اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے. آلدو کہ اسلام میں منت کا کانسیپٹ نہیں ہے، بٹ اگر کسی نے وعدہ کیا ہے اس چیز کی کوئی
अपने आप से कमिटमेंट की हुई है तो वो पूरी करनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी के रमज़ान के बचे हुए फ़र्ज़ रोज़े पेंडिंग थे और वो खातून या वो मर्द मर गया, इंतकाल कर गया, उसके बच्चों के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप का ये उधार जो अल्लाह ताला की तरफ है वो उसको पूरा करें, उनके रोज़े रख के वो उनको जो कब्र के अंदर मुश्किल है उससे आसानी दिलाएं। एटिकेट्स क्या हैं? बहुत क्विकली हम इसको देख लेते हैं ताकि हमारी असर जो है वो सब लोग टाइम पे पढ़ लें। एटिकेट्स ऑफ विजिटिंग ग्रेव्स में ये जो है सुन्नत के अंदर दुआ है। ये आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जब भी कब्रिस्तान में जाना है, अच्छा औरतें क्या कब्रिस्तान में जा सकती हैं, नहीं जा सकती, इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उसकी थोड़ी लंबी डिटेल हो जाएगी कि हदीस क्या है और क्या नहीं है, लेकिन इसमें जो एक एक सेट ऑफ स्कॉलर्स है जो कहता है कि औरतें जा सकती हैं बट विद द शर्त कि वो उनका हिजाब कंप्लीट हो, बिल्कुल उनके को परफ्यूम कोई इस किस्म की चीज ना हो, कंप्लीट शरई पर्दा हो करके वो जाएंगी, और प्लस ये कि वो वहां जाके कोई रोना धोना वेलिंग नहीं करेंगी, ठीक है। और दूसरा जो सेट ऑफ स्कॉलर्स हैं वो कम्प्लीटली प्रोहिबिट करते हैं और वो कहते हैं कि औरतों को कब्रिस्तान में जाना परमिसिबल नहीं है। मेरी पर्सनल इंक्लिनेशन इसी बात पे है कि औरतों को कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जनरली औरतें इमोशनली वीक होती हैं और वहां जाके अक्सर खवातीन जो हैं वो फिर बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती हैं, बेहोश होने लग जाती हैं, फेंट होने लग जाती हैं और सीन क्रिएट होता है। तो मेरा पर्सनल ख्याल भी यही है कि नहीं जाना चाहिए। और अगर लेट्स सपोज कि आप दूसरे ग्रुप ऑफ स्कॉलर से एग्री करते हैं और आप जाने के लिए तैयार हैं तो फिर शरई पर्दा आपको अच्छी तरह अपने आप को ढक के जरूर जाना चाहिए और महरम साथ होना चाहिए। अकेले नहीं जाना, दिन के वक्त जाना है, खुशबू नहीं लगानी, कोई मेकअप, कोई जर्क बर्क चमकीली चप्पलें कपड़े ये नहीं पहनने आपने, ठीक है। इसके अलावा दुआ जब भी आपने एंटर होना है मर्दों के लिए ये है कि जब कब्रिस्तान में जाएं तो ये ट्रांसलेशन है जिसमें सलाम आप देते हैं बेसिकली सारी कब्रों वालों को, और आप फिर उनसे कहते हैं कि इंशाल्लाह हम भी जल्द ही आपके साथ होंगे, आपके पास ही आ रहे हैं हम भी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कब्र के ऊपर जो है वो आपने जब ये दुआ या सलाम करना है या उनकी मगफरत के लिए दुआ करनी है तो कब्र की तरफ मुंह ना करें, किबले की तरफ मुंह करके आप ये दुआ करें। दूसरी चीज ये कि कब्र के ऊपर बैठना नहीं है और चलना नहीं है, ठीक है। आपने कब्र की एक अपनी रिस्पेक्ट है, उसके ऊपर बैठ ना जाएं, उसके ऊपर चलना नहीं है, वॉक नहीं करनी। फातिहा ना पढ़ें बिल्कुल भी, ये बहुत सिली मिस्टेक है जो सारे हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में बड़ा कॉमन है कि कब्रों पे जाके अगर आप किसी का अफसोस भी करने गए हैं तो वहाँ सारे जो है ना वो एकदम से कहते हैं अच्छा जी चले फातिहा पढ़ लेते हैं मरहूम के लिए। देखिए फातिहा जो है ना वो अगर किसी को फातिहा का मतलब पता है कि सूरह फातिहा के अंदर जो आयतें हैं उसका मतलब क्या है, तो वो बेसिकली हम अपने लिए ही अल्लाह ताला से चीजें मांग रहे होते हैं, उसमें हम डिसीज्ड के लिए कोई चीज नहीं मांग रहे। तो फातिहा जो है ये एक इनोवेशन भी है और एक मिसकंसेप्शन भी है कि अगर कोई मर जाए या कब्र पे जाए तो आप वहाँ फातिहा ख्वानी करेंगे, फातिहा नहीं पढ़ते। उसकी रीजन ये है कि आपकी फातिहा पढ़ने से अगर आप उसका मतलब देखें तो उससे आपको फायदा हो रहा है, उससे मुर्दा के लिए जो शख्स कब्र के अंदर है उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, आप उसके लिए कोई दुआ नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपने फातिहा नहीं पढ़नी, ये जो दुआ ऊपर शेयर की गई है ये पढ़नी है। इसके अलावा कुरान नहीं पढ़ना कब्र पे बैठ के। सहाबा कराम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं पर ये साबित नहीं होता कि उन्होंने दूसरे कंपेनियंस की कब्रों पे जाके कुरान पढ़ा हो या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की कब्रों पे कुरान पढ़ा हो, इसलिए कुरान नहीं पढ़ें, कुरान घर में पढ़ें। इसके अलावा पौधों पौधे लगाने का, कब्र पे फूल रखने का, अगरबत्तियां जलाने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर ये है कि आप उन पैसों से किसी गरीब को चैरिटी कर दें, खाना खिला दें, ठीक है। और इसके अलावा ये कि एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए कि कब्रों वाले हमें कोई फायदा नहीं दे सकते। कब्रों हम हमारी दुआ उनको फायदा दे सकती है लेकिन जो कब्र में है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा जी लास्ट स्लाइड है, यस। सो हमारी लास्ट स्लाइड है फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह इसरा की जो आयत है 36 नंबर, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और जिस बात का तुम्हें यकीन ना हो इसे सच समझकर इसके पीछे मत पड़ो, यकीन रखो कि कान आंख और दिल सब के बारे में तुमसे सवाल होगा, ठीक है। ये आयत बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज हमने जो भी बातें की हमने हदीस, ऑथेंटिक हदीस के साथ चीजों को एक्सप्लेन किया है। जिन चीजों के बारे में स्पेशली दीन की जो चीजें, वैसे तो खैर दुनिया की चीजों में भी जो नहीं पता उसके बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दीन की चीजों में स्पेशली जरूर ख्याल रखना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जिन चीजों के बारे में आपको नहीं इल्म, जस्ट बी अपफ्रंट एंड से आई डोंट नो। कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा अगर आप कह देंगे किसी बारे में कि मुझे नहीं पता। सबको पता है कि कोई भी शख्स के पास कंप्लीट मुकम्मल इल्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज में जरूर ख्याल रखना है कि हम जो भी बात करेंगे, हम जो भी कहेंगे सुनेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे उसका हमसे सवाल किया जाएगा, और जिस चीज के बारे में इल्म ना हो उसके अंदर नहीं घुसना चाहिए।
उसके बारे में घुसे, मतलब उसके बारे में पढ़ें, बट उसके बारे में बात ना करें जब तक आपकी नॉलेज उसके बारे में ऑथेंटिक ना हो। ये क्विक एक पिक्चर है, इसको मैं आपको, ये मैंने अटैच की थी लास्ट स्लाइड में, ऑल्दो कि ये मुस्लिम्स की प्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि इसमें सेव्ड एंड लॉस्ट का जिक्र है। मैं इसको अगर कहूँ तो यहाँ पर मोमिन और द रेस्ट, यानी मोमिन के अलावा जो होगा वो सारा इधर जाएगा। नैरो गेट है, ये देखें, ये दुनिया है, ये डेथ है, ये नैरो गेट है, उससे ही पता चल रहा है कि कम लोग ही इधर वाले में जाएंगे। वाइट गेट का मतलब है कि ज्यादा आवाम जो है वो इधर जा रही है। ये जो गोला है ये बेसिकली आपकी बरज़ख है, ठीक है। बरज़ख जो है यानी ये कब्र का टाइम है, इसमें अजाब कब्र या अच्छा जो कब्र का टाइम है वो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चंस जो है ना वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में लूंगी क्योंकि क्लास तो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी सबकी असर की नमाज निकल जाएगी, ठीक है। सो पैराडाइज एंड टॉर्मेंट ये आ गया। इसके बाद ये आप देखें, ये रेजरेक्शन आ गई, ये कब्रों से उठाए गए यहाँ पर। और उसके बाद ये क्यामत का दिन आ गया। उसके अंदर जो रिवॉर्ड होगा उसको जन्नत में बुलावा आ जाएगा, उसको कहा जाएगा आ जाओ, ठीक है। और जो शामत आएगी जिसकी गुनाह जो है वो, कुफार तो सारे ही इधर ही जाएंगे, ठीक है, कुफार की तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मुनाफिकीन भी इधर ही जाएंगे जब तक कि वो अपना और प्लस ये मुनाफिकीन के अलावा जो गुनाहगार मुसलमान होंगे वो भी इधर ही जाएंगे जब तक कि वो अपनी सजा, जैसे होता है ना सजाए मौत तो डिफरेंट होती है, लेकिन लेट्स सपोज के किसी को चोरी की सजा मिली 6 महीने, तो वो जब 6 महीने काट के पूरे करेगा तो फिर उसको जेल से रिहाई मिलेगी। सो सिमिलरली जो कंडेम्ड वाला एरिया यहाँ पर वो गुनाहगार मुसलमान भी जाएंगे, यहाँ पर काफिर तो पक्के पक्के इधर होंगे और मुनाफिक भी इधर ही होंगे, एंड दे विल बी पुश्ड इनटू हेल, यहाँ धक्का मार के इधर हेल के लेके जाएंगे। हेल के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर याद रखिएगा कि मेजोरिटी लोगों का ख्याल ये कि जो जहन्नुम है वो कोई जगह है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी एक पूरी डिटेल क्लास करेंगे रेजरेक्शन डे के ऊपर, क्योंकि उसके स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जनरल नॉलेज की चीज आपको मैं बता दूं कि जो जहन्नुम है वो इट्स अ क्रीचर, इट्स नॉट अ प्लेस, ठीक है। इसको हम फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्लास हम वाइंड अप करते हैं जल्दी से। इंशाल्लाह हमारी अब नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट मंथ मुलाकात होगी, और फिर तब तक के लिए जो है ना वो हम इसके क्वेश्चंस जो है वो ग्रुप में लेंगे।